growth and social change. Some of the initiatives by Circle include Tech Karo, She Loves Tech, and Elevate. Circle believes that it is critical for Pakistan's progress to invest in youth, especially women, to build their confidence, capacity, and create platforms for them to bring their ideas forward. These workshops are sponsored by Friedrich Naumann Foundation for Freedom, which aims to contribute to enhancement of soft skills in the field of entrepreneurship, business management, strategic communication, business leadership, and responsible citizenship. Today's session on design thinking will be conducted by our very talented trainer, Mr. Faisal Sherjan, who is the director, LUM Center for Entrepreneurship, as well as co-founder of Atari, BookMe, XCare, AutoX, CFX. He is among the famous entrepreneurs of the country and an active member of startup community. Over to you, Mr. Faisal. Thank you very much. I don't know whether I'm talented or not. I'm definitely old and I've been there and done a lot of things. So a couple of updates. So I'm not with LUMS anymore. What you see behind me is the logo of Colabs, which I was desperately trying to see if I could show all of it, but I can't position it right now. So design thinking, आप में से कितने लोग जो हैं उनको पता है या सुना है या पार्टिसिपेट किया है किसी भी सेशन में, किसी भी डिजाइन वर्कशॉप में? So if you could raise your hands, I can see that in the participants. I just see University of Turbat. I don't know how many people are actually participating from University of Turbat. Is there anybody there? If you can just raise your hand. अगर आप देखें तो यहाँ पर एक टैग होगा raise hand का. I'm just pressing mine, so you can see my hand is raised. This is the first lecture for all the students of design thinking. Gee, this is the first lecture? Yeah, this is the first thing we are hearing about design thinking. So now I can see we have a pretty good audience from Turbat. Yeah, that's right? basically Design thinking जो है ना, this is not entirely very recent or very new. It's been there for a long time. और उसका मकसद क्या होता है? What do you mean by design thinking? So पहली चीज जो है design thinking में वो उसको कहते हैं problem discovery. कि आपने वो प्रॉब्लम जो है उसको आइडेंटिफाई करना है जिसको आपने सॉल्व करना है. अगर एंटरप्रेन्योरशिप का आप सोचते हैं तो बहुत से लोग उसकी डेफिनेशन कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या एंटरप्रेन्योरशिप एक बिजनेस शुरू करने का नाम है कि जी एक एंटरप्रेन्योर जो है वो एक बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन है और उसने सोचा कि अच्छा मैंने ये कारोबार शुरू करना है, क्या ये है या क्या इससे ज्यादा है? सो बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में फर्क है. सबसे बड़ा फर्क ये है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो प्रॉब्लम सॉल्वर है. वो शुरू होता है एक प्रॉब्लम से, वो एक बिजनेस आइडिया से शुरू नहीं होता. ठीक है ना? उसका कोई ऐसा पाथ नहीं होता कि वो पहले दिन ही जो है वो कहे ये बड़ा जबरदस्त आइडिया, मैं इसमें बिजनेस शुरू करूंगा. एंटरप्रेन्योर जो है रियलिटी में वो शुरू होता है एक प्रॉब्लम के साथ कि ये एक प्रॉब्लम है जिसको मैंने सॉल्व करना है. वो प्रॉब्लम आपके घर में भी हो सकती है, वो आपके प्रॉब्लम जो आपके मोहल्ले में हो सकती है, वो आपके शहर की हो सकती है, वो आपकी प्रोविंस की हो सकती है, वो आपकी कंट्री की हो सकती है. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, पाकिस्तान को अगर हम देखते हैं और बलूचिस्तान को अगर हम देखें तो प्रॉब्लम्स क्या हैं जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, राइट, जिन्हें हमें सॉल्व करना है. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहली जो ज़हन में आती है वो एजुकेशन आता है. कि एजुकेशन की प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी एक्यूट है, वो काफ़ी प्रोनाउंस्ड है, वो काफ़ी डीप है, फ्रॉम प्राइमरी राइट अप टू टर्शरी एजुकेशन. ठीक है ना? तो एक ये प्रॉब्लम है. दूसरी प्रॉब्लम जो है वो हेल्थ है. बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हेल्थ की जो प्रॉब्लम है या हेल्थ सर्विसेज की जो प्रॉब्लम है वो एग्जैजरेट या एक्सेन्युएट होती है बिकॉज ऑफ द लार्ज एक्सपेंस ऑफ बलूचिस्तान, वेयर कम्युनिटीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंसेस. छोटे छोटे कस्बे हैं, छोटे छोटे शहर हैं. ठीक है ना? और ज़रूरी नहीं है कि हर शहर में हॉस्पिटल भी हो, क्लिनिक्स भी हो, डॉक्टर्स भी हो, राइट. सो वी हैव टू थिंक ऑफ इट कि अच्छा अगर मैंने बलूचिस्तान में हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है टू द पॉपुलेशन ऑफ बलूचिस्तान जो डिफरेंट एरियाज में फैली हुई हैं, छोटे छोटे कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए मैंने करनी है,
तो मेरी इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकती है, क्या मैं एक बड़ा हॉस्पिटल जाके बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, क्या मैं क्लिनिक बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, क्या मैं चेन ऑफ फार्मेसीज बना सकता हूँ या नहीं बना सकता। लेकिन इस किस्म की आपने उसमें सोच डालनी होती है। नेक्स्ट हम आते हैं फूड सिक्योरिटी पे। तो फूड सिक्योरिटी को अगर आप देखेंगे तो बलूचिस्तान में अगेन यू विल हैव टू थिंक ऑफ इट कि अच्छा प्रोविजन ऑफ कमोडिटीज कैसे होगी, तरसील कैसे होगी, एक जगह से दूसरी जगह चीजें कैसे जाएंगी। वीट अगर ज्यादातर आ रही है सिंध से या पंजाब से या केपी से, राइस आ रहा है तो वो कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो कैसे हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचेगा, वो कैसे हर दुकान को पहुंचेगा, ठीक है ना, जहां से वो लिया जा सकता। तो प्रॉब्लम को देखने की जरूरत है। इसी तरह अगर हम आ जाए एनर्जी पे आ जाए, राइट, सो एनर्जी की प्रोडक्शन जो है वो कहाँ हो रही है, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, फिर उसकी कंजम्पशन हो रही है, ठीक, फिर उसकी एफिशिएंसीज हैं, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं। इसी तरह जैसे क्वेटा में कैस्को है जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, वो कितनी इफेक्टिवली जो है आपको प्रोविजन कर सकती है, आपको कनेक्शन दे सकती है, घर का कनेक्शन चाहिए हो, कमर्शियल कनेक्शन चाहिए हो, तो दीज आर प्रॉब्लम्स। और हर प्रॉब्लम में अब एक और जो लेट्स से प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान का कोस्ट जो है, ठीक है ना, वो बहुत बड़ा कोस्ट है, अरेबियन सी के साथ बहुत ज्यादा स्पेस जो है वो टच होती है, उसमें प्रॉब्लम भी है और उसमें अपॉर्चुनिटी भी है। फिशरीज इज अ वेरी लार्ज अपॉर्चुनिटी जो बलूचिस्तान में बड़ी प्रोनाउंस्ड अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना, तो उसको हमने कैसे जो है कैपिटलाइज करना है। फ्रूट ऑर्चर्ड्स और फ्रूट प्रोडक्शन जो है वो बलूचिस्तान में, डेट्स की प्रोडक्शन इन सर्टन एरियाज ऑफ बलूचिस्तान, ठीक है ना, डेट पाम्स दरख्त हैं, डेट्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है ना, उसको हमने मार्केट एक्सेस कैसे देना है, उसकी बेहतर जो है प्रोडक्शन हमने कैसे करनी है, उसकी प्रिजर्वेशन हमने कैसे करनी है, पैकेजिंग कैसे करनी है, नो, सो ऑल दीज, सो इट स्टार्ट्स विद अ प्रॉब्लम कि हमने प्रॉब्लम कौन सी आइडेंटिफाई की है। जब आप अपनी यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे होते हैं, यू डूइंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड यू डूइंग योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स, तो ये आपने जरूर जहन में रख के अप्लाई करके वो अपने प्रोजेक्ट सोचने और डिजाइन करने हैं। Livestock is an opportunity, right? Is a problem and an opportunity in Balochistan, right? Because there is a lot of breeding of livestock, especially in goat farming, and the life poultry could be a very big opportunity for Balochistan, right? You could be capitalizing on that again because of space that you have. इस किस्म की चीजें ऑटोमेशन जो है, those students who are working on, let's say, data sciences, or who are working on automation, who are working on robotics, who are working on IoT applications, ठीक है ना, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सो डिजाइन थिंकिंग को जो हम कहते हैं कि जी उसका पहला स्टेप जो है, और एंटरप्रेन्योरशिप का भी पहला स्टेप जो है ना, वो प्रॉब्लम डिस्कवरी है कि मैंने कौन सी प्रॉब्लम ऐसी देखी है जिसको मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ कि मैंने इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व किया तो उससे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी। एक तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वो जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उसकी जब प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा तो उससे रिजल्ट क्या होगा, ठीक है ना, उस सोल्यूशन से क्या रिजल्ट होगा। प्रॉब्लम तो सिंगुलर है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं लेकिन सिंगुलर हैं, सोल्यूशन जो है वो मल्टीपल हो सकती है फॉर ईच सिंगल प्रॉब्लम। अभी जो हम बात कर रहे थे हेल्थ केयर प्रोविजनिंग की, कि हेल्थ केयर डिलीवरी करनी है अक्रॉस कम्युनिटीज इन बलोचिस्तान, so there are multiple ways of doing it, there are multiple solutions to it. One could be, we start to pick doctors up, or we start to pick students up from multiple communities, bring them into medical colleges, educate them, train them, send them back. The other could be a simple solution of telehealth. If I have telephone connectivity, which in most remote areas you now have telephone connectivity, and बलूचिस्तान में तो काफी इस पे काम भी हो रहा है, यूनिवर्सल सर्विस फंड जो है वो डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। So by just using one room, one technician, not a doctor, a technician who can take vital signs, who can take your blood pressure, who can take your pulse, who can take temperature, who can look at your eyes, and give that information to a doctor sitting remotely. That could be a possible solution to health and service delivery, right? So इस किस्म का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, जिससे पहला स्टेप है डिजाइन थिंकिंग का, जिसे हम एम्पैथी कहते हैं, राइट। एम्पैथी जो है
अगर उसका उर्दू का लफ्ज ढूंढे सोचें तो वो एहसास है, कि आपको एहसास होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर जो है उसमें एहसास होता है, उसमें सिर्फ ये तलब नहीं होती कि मैंने पैसे बनाने हैं, पैसा तो कॉन्सिक्वेंस है। अगर वो एहसास करके एक असल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है, किसी की तकलीफ को पहचानता है या पहचानती है, और फिर अपने सोल्यूशन के थ्रू उस तकलीफ को सॉल्व करती है, उसका कोई ना कोई उसका जो सोल्यूशन निकालते हैं, उससे जो है ऑटोमेटिकली एक बिजनेस जो है वो जन्म लेता है और वो बिजनेस बनना शुरू हो जाता है। Now, I was managing NIC Quetta also in terms of the overall design of it, and I discovered and I saw that because of the unique, let's say, issues being faced in Balochistan, there were people coming from different parts of Balochistan who were pitching and who were applying, and we selected them from Gwadar University, also from Turbat, I believe we've had some teams. Quetta se obviously the other teams aati thi, but the composition was very interesting, right? So there was always somebody who was trying to solve a problem to do with water. पानी का जो प्रॉब्लम है डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीकों से, whether it was कि जी फार्मिंग के लिए पानी कैसे इस्तेमाल करना है, ज़्यादा एफिशिएंसी कैसे लानी है. Gwadar University said there was a team of brother and sister, both of them engineers, who were using an IoT device, right, along with the soil sensing, जो सॉयल में मॉइस्चर सेंसिंग करके तो वो एक इरिगेशन सिस्टम जो है उसकी बेसिस पे डिजाइन हो सकता है, ठीक है ना. तो इस किस्म की प्रॉब्लम सॉल्यूशंस का वो है. तो सबसे पहली चीज है एम्पैथी, कि आपको एहसास करना है. आप सोचेंगे आज अगर बैठ के कि मैंने कौन सी प्रॉब्लम देखी है. रोज आप घर से जब निकलते हैं, अपने घर में भी कई दफा ये होता है, घर से निकलते हैं तो आपको प्रॉब्लम नजर आती हैं. आई विल जस्ट गिव यू स्मॉल एग्जांपल. एक दिन 3-4 दोस्त यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे थे और उन्होंने कहा कि अच्छा यार क्लासेस के बाद जो है ना वो कैंटीन में मिलना है और बैठ के चाय पियेंगे और गप लगाएंगे. So 3 turn up and 1 is not there. वो that 1 is missing. So he turns up after half an hour. तो सारे उसको कहते हैं यार तुम कहाँ थे, तुमने हमें तो बुला के तुम गायब ही हो गए. उसने कहा यार मैं निकल रहा था घर से, तो बस निकलने लगा तो वालिदा ने मुझे रोक लिया. उन्होंने कहा कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम स्टोर जो है उसको तरतीब में ला के जाओगे, कि उससे पहले तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे. कहते मैं स्टोर में गया, तो मैंने स्टोर को जब ठीक करना शुरू किया तो मैंने वहां देखा कि बहुत सी ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो हमने इस्तेमाल ही नहीं की, सारा साल से इस्तेमाल नहीं की. मेरे बचपन की साइकिल वहां पड़ी हुई थी, ठीक है ना. कोई जो है चीज, कोई पुरानी इस्त्री पड़ी हुई थी, एक छोटा पुराना टीवी पड़ा हुआ था. इस किस्म की बहुत सी चीजें पड़ी हुई थी. तो मैंने सोचा कि ये तो हर घर में ये प्रॉब्लम होगा कि स्टोर जो है वो भरे पड़े उन चीजों से जो कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा. तो बजाय कि हम स्टोर में उसको फेंक के बैठ जाएं, बेहतर नहीं होगा कि अगर हम उसको ट्रेड करना शुरू कर दें, बार्टर करना शुरू कर दें. मेरे पास अगर कोई चीज़ है जो आपको चाहिए मैं आपको दे दूं, आपके पास कोई चीज़ है जो मुझे चाहिए मैं ले लूं और जो इस्तेमाल में ले आऊं, ठीक है ना. जस्ट अ सिंपल एग्जांपल कि आप अपने घर में, कई दफ़ा होता है कि एक छोटी सी चीज़ से आपको कोई चीज़ नज़र आनी शुरू होती है कि ये एक प्रॉब्लम है. इसी तरह जब आप घर से निकलते हैं, आप कहीं जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी आ रहे हैं या किसी बाजार में जा रहे हैं, तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स नज़र आएंगी. आप बाजार में एक दुकान में जाते हैं, वो एक्सपीरियंस जो है आपका दुकान में जाने का, उसको अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको नजर आएगा कि कई प्रॉब्लम्स आपको नजर आ जाएंगी कि उस दुकान की शायद उसकी जो फॉर्मेशन है, उसका जो जिस तरीके से वो बनी हुई है, डिजाइन हुई हुई है, शायद उसको आप बेहतर कर सकें. जो ट्रांजैक्शन का प्रोसेस है शायद वो बेहतर हो सके, ठीक है ना. इस किस्म की चीजें. तो एम्पैथी जो है वो पहला जुज्व है डिजाइन थिंकिंग का. सबसे पहले आपने ये एबिलिटी डेवलप करनी है कि मैं एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करूं और जिन लोगों को वो प्रॉब्लम अफेक्ट करती है उस सेगमेंट को मैं आइडेंटिफाई करूं, और फिर मैं उनके बारे में जितना जान सकता हूं या जान सकती हूं मुझे वो करना है. आई मस्ट अंडरस्टैंड द कस्टमर, ठीक है ना. मुझे डीप एनालिसिस करना है, मुझे उनसे बैठ के बात करनी है. मुझे सिर्फ गूगल पे जाके ये नहीं देख लेना कि जी हेल्थ जो है वो कितने लोगों को अफेक्ट कर रही है, एजुकेशन जो है वो इमरजेंसी हुई भी है, 25
वो कहते हैं ना 25 मिलियन 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा रहे, ठीक है ना, ये तो मुझे पता है मोटा मोटा, बट आई मस्ट नो एट अ डीपर ग्रैनुलर लेवल कि वो प्रॉब्लम्स क्या है. Is the problem of health larger and more exaggerated between mother and child, or is there a problem deeper than that? Is the problem because most of the diseases are caused by waterborne pathogens? तो क्या वो एक इशू है जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि पानी जो है सिर्फ मैं उसी को साफ कर दूं तो बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है. अब यही प्रॉब्लम जो है वो अफ्रीका में मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने इस एक प्रॉब्लम पे फोकस किया था, clean drinking water, right? And within 10, 12 years of intervention, they've increased the productivity of all of Africa, right? Just by solving this one problem of clean drinking water, right? So आपने deeper level पे उस problem को देखना है. आपने ये देखना है कि वो जो जिसको वो अफेक्ट कर रही है वो कैसे अफेक्ट कर रही है और वो कितना डीप है इफेक्ट उसका, क्योंकि जितना ज्यादा प्रॉब्लम होगा, जितना डीपली इफेक्ट करेगा, उतनी ज्यादा जो है एपेटाइट होगी फॉर योर सोल्यूशन. जब आप सोल्यूशन डिजाइन करेंगे तो उतना ही एपेटाइट बढ़ जाता है. तो सबसे पहली चीज जो है वो आपकी एम्पैथी है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर है. तो पहली चीज जब हमने एक बात की वो हमने एम्पैथी की बात की. अब उसके बाद हम आते हैं डेफिनेशन पे कि उस प्रॉब्लम को हमने डिफाइन करना है एट ए वेरी डीप लेवल कि वो प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या और उसके जो है डिफरेंट एलिमेंट्स क्या है, ताकि उसको हमने ब्रेक डाउन कर देना है. तो जब भी कोई प्रॉब्लम होता है उसको जब हम ब्रेक डाउन करते हैं इनटू कंपोनेंट्स तो उसका सोल्यूशन जो है वो ज्यादा आसान हो जाता है. अदरवाइज द प्रॉब्लम लुक्स वेरी कॉम्प्लेक्स. अगेन इफ यू लुक एट हेल्थ, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. बट अगर उसको आप ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं जैसे मैंने पहले मेंशन किया, इफ यू जस्ट फोकस ऑन मदर एंड चाइल्ड, ऑन प्री नेटल पोस्ट नेटल हेल्थ, right, on making sure that a young woman is aware, right, of what is happening in her body when she is carrying a child, how much nutrition she needs, what she needs in terms of monitoring of her trimesters. छोटी सी एक एग्जाम्पल है कि आप उसको ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं. जब आप ब्रेक डाउन करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, आई वुड इमेजिन देयर आर लॉट ऑफ इंजीनियर्स सिटिंग हियर, so you go through a portion of that problem and you simplify that, then you simplify the next one, then you simplify the next one, और हर सिंप्लीफिकेशन के साथ उसका सोल्यूशन जो है वो क्रिस्टलाइज होता है, वो इमर्ज होता है. तो प्रॉब्लम डेफिनेशन जो है वो सेकंड स्टेप है डिजाइन थिंकिंग का, कि वो बहुत जरूरी है कि उस प्रॉब्लम को और उस सेगमेंट को आप समझें जिसका वो प्रॉब्लम है, और उसको आप अल्टीमेट लेवल तक जो है nth डिग्री तक उसको डिफाइन कर दें कि वो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं और वो किस किस्म की डीप उसकी जो पेन है वो क्या है, यानी कौन सी और कितनी चीज उससे इफेक्ट होती है. जब हेल्थ की हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है. अगर कोई बीमार है तो वो काम नहीं कर सकता, वो फंक्शन नहीं कर सकता. घर में है तो घर में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है. वी ऑल गॉन थ्रू कोविड. कोविड से हमें हर एक बीमार नहीं हुआ, ये परसेंटेज वाज इल, बट इफेक्ट सब हुए क्योंकि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते थे. लेकिन उसके बड़े डीप असरात हुए, साइकोलॉजिकल असरात हुए, बच्चों पे असर हुआ है उसका जो स्कूल नहीं जा पा रहे. ठीक है ना, उनको बहुत बड़ा इशू आया है. जिनको रिक्वायरमेंट है सोशल इंटरेक्शन की, वो सोशल इंटरेक्शन नहीं हो सका, वो दूसरे बच्चों के साथ खेल नहीं सके, वो पार्क नहीं जा सके, वो घर से बाहर नहीं निकल सके, वो तफरी नहीं हो सकी. तो बड़ा डीप उसका इफेक्ट आना शुरू हुआ है. राइट, तो आपने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है. उसका पहले तो प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करना है, फिर प्रॉब्लम को आपने डिफाइन करना है. जब आप प्रॉब्लम डिफाइन कर लेते हैं और आप अपनी रिसर्च कर लेते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट उसका जो है वो है कि आपने जिसका प्रॉब्लम है उससे बैठ के बात करनी है, उसको आपने समझना है, उनसे आपने सवाल पूछने हैं. आपने ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप वो जो उनसे बात करें, इंटरव्यू करें, उसको आप रिकॉर्ड करें ताकि उसको आप बाद में उसको स्टडी कर सकें कि उन्होंने कहा क्या है. कई दफा होता है कि एक लफ्ज जो है उसका मायना जो है ना वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाता है इन दी अंडरस्टैंडिंग. तो आपने बहुत डीप लेवल पे जो है ना ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि आपने क्या करना है. उसकी वजह ये है
कि आप उससे जो है जब सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, तो जो एक लफ्ज है प्रोडक्ट मार्केट फिट, ये मैं इस पे बाद में भी आऊंगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कि प्रोडक्ट मार्केट फिट होता क्या है और वो इम्पोर्टेंट क्यों है और कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी। तो डेफिनेशन स्टेज में आपने सिर्फ पेरिफेरल अंडरस्टैंडिंग नहीं करनी, आपने डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग करनी है उस प्रॉब्लम की और उस सेगमेंट की जिसका वो प्रॉब्लम है। लेकिन कई दफा आप देखेंगे कि देयर विल बी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज एंड विद इन अ कम्युनिटी। जेंडर रिलेटेड कई दफा जो है वो फोकस होता है, राइट। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जो खवातीन के लिए होगी। एज एन एग्जांपल, उबर एंड करीम वी ऑल हर्ड ऑफ। मोस्ट ऑफ द यूजर्स ऑफ उबर एंड करीम आर women, नियर अबाउट 70%, 70%। स्पेशली बड़े शहरों में जो यूजर्स हैं उबर एंड करीम के, वो खवातीन हैं, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम था उनके लिए मोबिलिटी का। वो मोटरसाइकिल खुद नहीं चला पा रही थी या वो नहीं चलाती थी बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ आवर कम्युनिटी एक्सेप्टेंस। तो इसलिए उनके लिए एक जगह से दूसरी जगह ना, बेशक घर से स्कूल या कॉलेज जाना हो, यूनिवर्सिटी जाना हो, काम पे जाना हो, मार्केट में जाना हो, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था उनके लिए। जो है वो सोल्यूशन जो है वो करीम और उबर ने प्रोवाइड किया। उससे पहले रिक्शाज प्रोवाइड करते थे। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड हैव एक्सपीरियंस रिक्शा राइड समवेयर। रिक्शाज जो है वो भी ज़्यादातर खवातीन इस्तेमाल करती थी, राइट। तो इस तरह उसको सोचना है। शॉपिंग या ग्रोसरी बाइंग, ये भी अगर आप देखें तो ड्यूरिंग कोविड एंड पोस्ट कोविड बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। आई एम श्योर तुर्बत में भी आया होगा, बड़े शहरों में तो आया ही आया है, बिकॉज पीपल कुडंट लीव देयर होम्स, दे कुडंट गो टू द मार्केट, दे कुडंट गो टू द शॉप्स। सो डिलीवरी सर्विसेज जो हैं वो उन्होंने जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू किया। छोटे छोटे शहरों में भी डिलीवरी सर्विसेज शुरू हो गई, एक अपॉर्चुनिटी इमर्ज हुई क्योंकि प्रॉब्लम था, राइट। तो वो जिसने उस प्रॉब्लम को बेहतर समझा और उसको बेहतर तरीके से एड्रेस किया, दे आर ग्रोइंग। आई गिव एन एग्जांपल। स्वाबी में एक कंपनी है, स्वाबी एज यू ऑल नो कि केपी में एक छोटा सा शहर है, उसमें एक कंपनी है बतूर के नाम से, एंड दे हैव बीन ग्रोइंग, राइट। वो प्री कोविड वो एक स्टेज पे पहुंचे थे, ड्यूरिंग कोविड उनकी ग्रोथ हुई, पोस्ट कोविड उनकी और बड़ी ग्रोथ हो रही है, राइट। सो एक प्रॉब्लम जो आया जिसकी वजह से लोग घरों में ठीक है ना महदूद हो गए, तो उसका सोल्यूशन आना शुरू किया। इसी तरह आप देखेंगे तो आपको और भी चीजें नजर आएंगी, बट उसको डिफाइन करना बहुत जरूरी हो जाता है कि मैं उसके हर एंगल को देखूं, मैं उसके हर एलिमेंट को देखूं। अगर मुझे डिलीवरी करनी है तो मुझे ये भी सोचना है कि डिलीवरी पे जो कलेक्शन ऑफ मनी है वो कैसे होगी। क्या प्री डिलीवरी जो है वो परचेज होगा, क्या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इस्तेमाल होगा, क्या इजी पैसा इस्तेमाल होगा, ओमनी इस्तेमाल होगा, जैज कैश इस्तेमाल होगा, क्या होगा। लेकिन ये सारी चीजें आपने फिर एक एक चीज को देखना है, एक एक चीज को रिसर्च करना है। जब आप डिफाइन कर लेते हैं प्रॉब्लम को और ये सारे एलिमेंट्स आपके पास आ जाते हैं, तो नेक्स्ट स्टेज है विच एवरीबडी एंजॉयज, और वो है आइडिएशन, कि आपने आइडिएट करना है। अब आते हैं आप सॉल्यूशंस पे। क्या मैंने प्रॉब्लम देख ली, मैंने वो सेगमेंट देख लिया जिसकी वो प्रॉब्लम है, मैंने उसको डिफाइन कर दिया, मैंने उनकी जरूरत समझ ली। अब जब मैं सारी चीजें ये समझ चुका हूं, अब मुझे जो है उसमें आइडिएशन करनी है कि अब मेरे पास इस प्रॉब्लम की बेहतरीन सोल्यूशन कौन सी है। देयर मे बी मोर देन वन सोल्यूशन अगेन, ठीक है ना। मैंने बतूर का आपको मेंशन किया। अब बतूर छोटे से शहर में है, स्वाबी में है, मोस्ट लाइकली जो डिलीवरी सर्कल उसका होगा वो 3 से 5 किलोमीटर या 5 से 7 किलोमीटर का होगा। अगर 5 से 7 किलोमीटर है तो मैं क्या मीन्स इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्या मुझे गाड़ी इस्तेमाल करनी है, क्या मुझे मोटरसाइकिल इस्तेमाल करनी है, क्या मुझे साइकिल इस्तेमाल करनी है। मैंने काफ़ी अरसा जो है वो यूके में गुजारा, लंदन में गुजारा, कुछ अरसा मैंने न्यूयॉर्क में गुजारा। उन दोनों शहरों में आप बिलीव करेंगे जो कुरियर सर्विसेज थी, सबसे तेज कुरियर सर्विस जो थी, जो लंदन का जो इनर सर्कल है, जो इनर सिटी है जहां पर बहुत ज्यादा ऑफिसेज हैं, बिल्डिंग्स हैं, लोग काम करते हैं, वो रोलर ब्लेड पे जो कुरियर थे वो थे, या साइकिल कुरियर जो था वो था। साइकिल कुरियर, ऑर्डिनरी साइकिल,
क्योंकि ट्रैफिक इतनी ज़्यादा होती है कि कोई और हो तो उसके लिए मुश्किल हो जाती है। वन वे स्ट्रीट्स हैं, ट्रैफिक लाइट्स हैं, साइकिल वाला जो है वो जल्दी जो है वो सिटी में नेविगेट कर सकता है, क्योंकि नॉर्मली गाड़ी की स्पीड जो है वो तकरीबन 10-15 किलोमीटर पर आवर पे आ जाती है। और फिर उनके वो लिमिटेशंस भी हैं कि जी वन वे स्ट्रीट्स हैं, घूम के जाना पड़ेगा, साइकिल वाले को प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो इस किस्म की आपने आइडिएशन करनी है कि इस प्रॉब्लम के लिए मुझे कौन सी सोल्यूशन जो है वो बेहतरीन है, बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी मोर देन वन सोल्यूशन। आपने हर सूरत में जो है वो मल्टीपल सोल्यूशन, हम बार बार जब डिज़ाइन थिंकिंग वर्कशॉप करते हैं, ये तो क्योंकि जूम पे कर रहे हैं तो मुझे इस तरह करना पड़ रहा है, अदरवाइज दिस वुड बी एन इंटरैक्टिव वर्कशॉप। You would all be involved. You would be involved from the empathy stage and saying, okay, what is the problem that we are identifying? किसका प्रॉब्लम है, कौन सा प्रॉब्लम है, क्या है, इसको हम पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम दूसरी स्टेज पे डेफिनेशन पे जाएंगे। तो यू वुड ऑल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड वी से कि जी आपने क्वांटिटी पे जाना है, क्वालिटी पे नहीं जाना। इस स्टेज पे आपने क्वालिटी पे नहीं जाना, आपने क्वांटिटी पे जाना है। आपने जितनी उसकी प्रॉब्लम की एंगल्स हैं उन सबको डिफाइन करना है। आपने सोचना है कि इसमें और क्या हो सकता है, फिर और क्या हो सकता है, और फिर और क्या हो सकता है, ठीक है ना। इस लेवल तक आपने सोचना है। फिर जब आइडिएशन पे आते हैं तो आइडिएशन में भी आपने यही करना है। देयर इज नेवर अ सिंगल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। देयर मे बी अ बेस्ट सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, बट नेवर अ सिंगल सोल्यूशन। टू अराइव एट दैट बेस्ट सोल्यूशन, to arrive at that perfect fit of the solution that you are providing to the problem you've identified, you have to go through multiple solutions. तो आइडिएशन की स्टेज पे आपने हर चीज जो जहन में आती है उसको जो है सामने ले आना है। डू नॉट फॉल इन लव विद योर सोल्यूशन, ये आपने जहन में रखना है। इसको आपने जो है ना पक्का अपना एक हिस्सा बना देना है कि मुझे जो है अपने सोल्यूशन के साथ नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू फॉल इन लव के बस यही सोल्यूशन है। आई हैव टू लव द प्रॉब्लम। वो मुझे जो है उस पे मुझे जो है ना बिल्कुल 100% अबूर होना चाहिए कि प्रॉब्लम मुझे जो है वो सबसे अजीज है, सोल्यूशन उसके जो है ना मल्टीपल है। तो मैं एक सोल्यूशन जब डिफाइन कर लूँ कि ये मैंने थ्रू द प्रोसेस ऑफ आइडिएशन बेस्ट सोल्यूशन पे मैं अराइव कर लूँ, अब मैंने उसको प्रोटोटाइप करना है। प्रोटोटाइपिंग क्या है? मैंने उस सोल्यूशन को, उस आइडिया को शक्ल देनी है। अगर उसमें कोई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, लेट्स से कोई एमवीपी बनाना है, एमवीपी इज अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, राइट। सो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या है? वो चीज है जो मैं पहली स्टेज पे किसी को टेस्ट करवा सकता हूँ। घर में इफ आई स्टार्टेड टू कुक, मैं सोचता हूँ कि जी मुझे खाना पकाना आता है, तो मैं खाना पका के ये मैं डिलीवर करना शुरू कर दूं, तो मुझे सबसे पहले एक डिश बनानी पड़ेगी ना। मैंने दाल बनानी है, या मैंने आलू गोश्त बनाना है, या मैंने सब्जी बनानी है, तो मैं सबसे पहले तो पहला एक बनाऊंगा या बनाऊंगी, और मुझे फिर उसको टेस्ट करना होगा। सो प्रोटोटाइपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह व्हेन यू गो इनटू डीपर टेक, लेट्स अज्यूम कि जी अब बहुत बात हो रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की, इलेक्ट्रिक जो है ना कि जी आप कार्बन से हटें और हाइड्रोजन की तरफ आए, आप जो है बजाय पेट्रोल के और डीजल के आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे आए। तो उसमें मोटरसाइकिल भी हो सकती हैं, स्कूटर्स भी हो सकते हैं, साइकिल्स भी हो सकती हैं। तो लेट्स अज्यूम कि जी हमने जो है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में हमने डिसाइड किया कि हम एक पावर्ड साइकिल बनाएंगे। एक साइकिल होगी जिसमें एक इलेक्ट्रिकल मोटर होगी। वो इलेक्ट्रिकल मोटर जो है उसके लिए एक बैटरी चाहिए होगी। वो बैटरी जो है, ठीक है ना, उसकी क्या स्ट्रेंथ होगी, क्या पावर होगी। वो जो साइकिल है उसमें सेफ्टी मैकेनिज्म्स क्या होंगे? क्या सिर्फ बाय प्रेसिंग द लीवर जो मेरे हाथ में है, कैन आई कट आउट द इलेक्ट्रिकल मोटर? अगर मैं स्पीड पे जा रहा हूँ और मुझे वो मैंने सिर्फ उसको प्रेस किया तो उससे मोटर जो है वो कट आउट हो जाए और मैं उसको रोक सकूंगी। ऑल दीज इश्यूज विल कम इनटू दैट प्रोटोटाइपिंग, कि मैंने प्रोटोटाइप कैसे बनाना है। अगर मैं एक IoT डिवाइस बना रहा हूँ, जैसे मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर का जिक्र किया कि वहां से एक टीम थी जिन्होंने एक IoT डिवाइस, IoT बेस्ड सोल्यूशन निकाला कि मैं किस तरह जो है ना पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करना था कि कम पानी इस्तेमाल हो, उतना ही पानी इस्तेमाल हो जितना उस पौधे को चाहिए हो। तो अगर आप पौधे को ज़्यादा पानी देंगे तो वो भी नुकसानदेह होता है।
और आपने पानी भी बचाना है, तो आपने एक सोल्यूशन निकालना है कि मेरे पास डेटा हो, मेरे पास इंफॉर्मेशन हो कि मैंने इस पौधे को पानी कितना देना है और कब देना है। ठीक है, तो इस तरह की जो है वो आप प्रोटोटाइपिंग करेंगे। जब आप प्रोटोटाइप कर लेंगे तो उसके बाद आपने उसको टेस्ट करना है, राइट। जो हमने पहले भी बात की, अगर आपने फूड बिजनेस में जाना है तो आपने एक रेसिपी जो है वो बनानी है, उस रेसिपी से आपने वो डिश प्रोड्यूस करनी है, उस डिश को फिर आपने टेस्ट करवाना है लोगों से, ताकि वो बताएं आपको कि जी कैसी है। अब मैं रिसेंटली आई हैव कम अक्रॉस ए कंपनी जो बर्गर्स बेचती है, और उनकी 4 आउटलेट्स है। दे कॉन्स्टेंटली टेस्टिंग प्रोडक्ट, वो नई नई रेसिपीज बना रहे हैं, वो नई सॉसेस बना रहे हैं। अब उन सॉसेस को वो टेस्ट करना पड़ता है कि क्या ये कस्टमर जो है, जो कंज्यूम कर रहा है वो बर्गर, उसको वो सॉस पसंद आई या नहीं पसंद आई। ठीक है ना, इस किस्म की चीज़ें जो है वो सारा वक्त उनको वो करनी पड़ती हैं। तो आपने ये टेस्टिंग फेज जो है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज, कि आपने अपने प्रोडक्ट को, अपनी सोल्यूशन को टेस्ट करना है। उस टेस्टिंग से आपको इंसाइट्स मिलेंगे, तो आप कंज्यूमर्स के साथ टेस्ट कर रहे हैं, रियल यूजर्स के साथ टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, उनका बिहेवियर देख रहे हैं। यूआई यूएक्स जो हम कहते हैं, यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस, उसको आपने डिफाइन करना है। अगर एक मोबाइल बेस्ड आपका कोई प्रोडक्ट है, तो उसको आपने थ्रू दैट टेस्टिंग, उसमें जो एलिमेंट्स हैं जिसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है, वो इंप्रूवमेंट आपने करनी है। जब आप टेस्ट कर लेते हैं और आपको इंफॉर्मेशन आनी शुरू होती है, ठीक है ना, तो उसी टेस्टिंग को फिर उसी इंफॉर्मेशन की बेसिस पे आप फीडबैक करते हैं इनटू योर एम्पैथी स्टेज, राइट। सो यू क्लोज द लूप, कि वापस आप चले जाते हैं टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम दैट यू आइडेंटिफाइड, और वहां से फिर दोबारा आप जो है नेक्स्ट स्टेज पे, कि वो जो आपको अब इंसाइट मिल गया है, इंफॉर्मेशन मिल गई है, वो उसको आप कैसे जो है ना आइडिएशन में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। फिर अपने प्रोटोटाइप को आप कैसे इंप्रूव करेंगे, और फिर आप दोबारा टेस्ट करेंगे, राइट। सो डिजाइन थिंकिंग इज अबाउट द प्रोसेस। उसके एलिमेंट्स हमने बात कर ली कि एलिमेंट्स क्या है। सो वी स्टार्ट विद एम्पैथी, वी डू अ डेफिनेशन ऑफ द एम्पैथी इज व्हाट डिस्कवरी ऑफ द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम है क्या और किसकी प्रॉब्लम है। जब हम किस पे आ जाते हैं कि जी कौन है जिसको ये अफेक्ट कर रही है, वहां से हम उसको डिफाइन करना शुरू करते हैं। तो सेकंड स्टेज है डेफिनेशन की, कि उसकी डेफिनेशन क्या है, वो प्रॉब्लम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड स्टेज है आपकी आइडिएशन की, कि अब उसके सॉल्यूशंस हमने कैसे डिजाइन करने हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं उसके, पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं उसके। चौथी स्टेज है प्रोटोटाइपिंग की, कि हमने उसकी प्रोटोटाइप कैसे बनानी है। वो टेस्टिंग के लिए जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसको हमने बना लेना है, और उसको हमने मार्केट में लेके जाना है, या फ्रेंडली यूजर ट्रायल्स करते हैं। कई दफा फ्रेंडली यूजर ट्रायल्स होते हैं, आपने 20 लोगों, 50 लोगों, 100 लोगों से उसको टेस्ट किया बिफोर यू गो टू मिलियंस। जब टेस्ट करना शुरू करते हैं आप, विच मीन्स यू एक्चुअली टेकन इट टू मार्केट, वहां से जो आपको इंफॉर्मेशन आनी शुरू होती है, कस्टमर बिहेवियर आप देखना शुरू करते हैं, उसको आप वापस लेके जाते हैं टू द एम्पैथी स्टेज, डेफिनेशन, your ideation and your prototype. Any questions up to this point? No questions? Achha. So we've understood everything? Yes, sir. Yes, sir. So what is it that you like out of these 5 elements? Which element would you want to be part of? Empathy. Empathy. एहसास, ठीक है ना, that is what an entrepreneur is. Entrepreneur में एहसास होगा ना, तो उसकी सक्सेस का रेशो बढ़ जाता है। क्योंकि सबसे पहली चीज ये है कि कस्टमर है, कस्टमर सेंट्रिसिटी, किसकी प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है और कितनी डीप है और कितनी तकलीफ दे है, ये समझना सबसे जरूरी चीज है। वहीं से आपका जो है ना प्रोडक्ट मार्केट फिट शुरू होता है। बहुत सी रिसर्च हुई है कि रीजन ऑफ फेलियर क्या होते हैं बिजनेस के। सबसे बड़ा रीजन जो है वो है ही ये प्रोडक्ट मार्केट फिट का, कि हम जाके कोई ऐसी सोल्यूशन बना लेते हैं, या कोई ऐसी प्रोडक्ट बना लेते हैं, या कोई ऐसी सर्विस बना लेते हैं जिसकी असल में जरूरत ही नहीं है, या वो उस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करती। अगर वो उस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करती तो वो सोल्यूशन जो है वो करामत नहीं हो सकती।
और जितना पैसा आप उस बिजनेस पे लगाएंगे, उस प्रोडक्ट पे लगाएंगे, वो सारा जाया हो जाता है। कई दफा कंपनीज जो हैं वो 3-3 4-4 साइकिल्स के थ्रू गुजर के फाइनली उस प्रॉब्लम पे पहुंचती हैं जो असल में उनको देखना चाहिए था, राइट फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंस। अभी जस्ट बिफोर दिस वर्कशॉप आई वाज इन अ मीटिंग विद अ कंपनी दैट डज पॉलीमर्स, ठीक है ना, पॉलीमर्स मीनिंग प्लास्टिक्स, वेरी लार्ज कंपनी, एंड दे आर स्केलिंग अप देयर प्रोडक्शन, दे आर पुटिंग अप न्यू प्लांट्स। वो 50% जो है मोर और लेस प्लास्टिक की जो प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान में वो प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। वो बाहर की जो इंपोर्ट है उसको सब्सिट्यूट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम उनके लिए बहुत बड़ा है। प्रॉब्लम ये है कि प्लास्टिक को अगर आप रिसाइकल नहीं करेंगे वो बहुत बड़ा इशू बन जाता है। दैट इज वाई दे हैड कम टुडे टू हैव अ कॉन्वर्सेशन कि जी इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है, because they were looking for people like yourselves who will solve that problem for them. It's a very large corporate group worth billions of dollars, and they have a problem. And they came to Collabs, which is a co-working space, जहाँ पर very young entrepreneurs are also sitting, mature companies are also sitting. कि जी ये प्रॉब्लम है हमारा, हम सर्कुलर प्लास्टिक इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। जो दो लोग आए थे उनके मैंने कार्ड जब देखे, एक मैनेजर सर्कुलर प्लास्टिक है, एक उसका डेप्टी मैनेजर सर्कुलर प्लास्टिक है। कंपनी जो है प्लास्टिक बनाती है, बट देव अंडरस्टूड कि अगर हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया तो हमारा फ्यूचर नहीं है, राइट। सो आप लोग जो बैठे हैं, यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम फॉर देम, बिकॉज दैट इज व्हाई दे केम एंड वी हैड अ 1 hour discussion on how young entrepreneurs, the reason why they came is because they said we want to invest in young entrepreneurs who can solve these problems for us. The problem could be recycling that plastic. The problem could be substituting the plastic. Because whenever you polymerize something, you can depolymerize it also. जो आपकी लैंडफिल में प्लास्टिक्स जा रही हैं, जो आपकी जो है प्लास्टिक फेंकी जाती है, वी ऑल नो शॉपिंग बैग जो है, जिसे हम शॉपर कहते हैं, ठीक है ना, उसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट है। जब वो फेंक दिया जाता है वो ड्रेन्स को बंद कर देता है, वो हर जगह जो है आपको नजर आता है, ठीक है ना। लेकिन उसी को अगर आप लेकर आप उसको रिसाइकिल कर दें, उसको डीपॉलिमराइज कर दें, तो वो एक सोल्यूशन भी बन जाता है, ठीक है ना। प्लास्टिक ऐसे तो नहीं आ गया दुनिया में, 50 साल पहले 60 साल पहले प्लास्टिक जो है उससे चीजें बननी शुरू हुई, रेवोल्यूशन आ गया इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। फूड पैकेजिंग में रेवोल्यूशन आ गया, लॉजिस्टिक्स में रेवोल्यूशन आ गया, बिकॉज यू कुड पैक थिंग्स फॉर लॉन्गर प्रिजर्वेशन, ठीक है ना। इस किस्म की चीजें होनी शुरू होगी। गाड़ियों में अगर आप देखें तो कितना प्लास्टिक इस्तेमाल होता है। इंटीरियर देखें गाड़ी का, डैशबोर्ड जो है सारा प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है ना। अगर ना होता तो क्या लोहे का बनाते हैं हम डैशबोर्ड, उसमें टकरे मार रहे होते, ठीक है ना। तो वो बड़ा मुश्किल काम था, मोल्डिंग नहीं हो सकती थी, शेप नहीं दी जा सकती थी। लेकिन अब वो प्रॉब्लम है कि उसी प्लास्टिक को किसी ना किसी तरीके से जो है रिसाइकिल करना है, ताकि वो लैंडफिल में ना जाए। लैंडफिल्स में बहुत सी चीजें हैं, सब ने यहाँ पर हमने सब ने कपड़े पहने हुए। डू यू रियलाइज दैट क्लोथिंग क्लोथिंग इज एक्चुअली द थर्ड लार्जेस्ट पोल्यूटर ऑन दिस प्लैनेट। थर्ड लार्जेस्ट, नंबर 1 इज ऑयल, नंबर 2 इज फूड, नंबर 3 इज क्लोथिंग, फैब्रिक। तो फैब्रिक्स जो है डिफरेंट चीजों से बनते हैं, उसमें पॉलीमर्स भी इस्तेमाल होते हैं, रेयन भी इस्तेमाल होता है, सिंथेटिक फाइबर भी इस्तेमाल होता है, नेचुरल फाइबर भी इस्तेमाल होता है। और 97 मिलियन टन्स 97 मिलियन टन्स of clothing ends up in landfills every year. तो कुछ देर पहनने के बाद हम उसको फेंक देते हैं। वो जब फेंक देते हैं तो फिर वो कहाँ जाएगा। अब जो दुनिया में बातचीत हो रही है वो सस्टेनेबल फैशन की बात हो रही है कि जो कॉटन ग्रो होती है उस कॉटन को भी जो है इसी तरीके से ग्रो करना है कि पानी कम इस्तेमाल हो, उसकी जो प्रोसेसिंग है उसमें भी ये काम करना है कि काफी पानी कम इस्तेमाल हो। टेक्सटाइल में डाइंग का प्रोसेस जो है उसको भी ये करना है, जो डाइज हैं वो भी रीयूजेबल हो, जो पानी इस्तेमाल होता है वो भी रीयूजेबल हो, ये सारी चीजें, राइट। तो इफ यू थिंक अबाउट इट, हमारे इर्द गिर्द जो है ना ये है। अब मोबाइल फोन्स हैं, हैव यू थॉट ऑफ इट कि जो मोबाइल फोन्स जो है हम डिस्कार्ड करते हैं, होता क्या है, कई तो हम एक ड्रॉर में डाल के भूल जाते हैं, 5 साल बाद फिर ख्याल आता है, फिर देखते हैं अच्छा ये पड़ा हुआ है, ये तो मैंने 5 साल पहले फेंक दिया था।
वो बिकता है दोबारा। अब उसमें से कई दफ़ा मटेरियल रिकवरी होती है कि उसका जो मदरबोर्ड है, ठीक है ना, उसका जो पीसीबी है, उस पीसीबी पे अगर आप देखें तो क्या क्या चीज़ें हैं, वो पीसीबी मोस्ट लाइकली प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है ना, उस पर सोल्डरिंग हुई भी है, उस पर जो है वो जो है वेट एचिंग के थ्रू एक पूरा सर्किट बना हुआ है। अगर आप मोबाइल फोन ही को खोल के देखें तो उसमें आपको इतनी ज्यादा कंपोनेंट्स नजर आएंगी कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भाई इसको मुझे किसी ना किसी तरीके से दोबारा इस्तेमाल में लाना है, मुझे इसको रिसाइकिल करना है। सोलर एनर्जी, ठीक है, हम सोलर एनर्जी का हम कहते हैं ग्रीन एनर्जी है, बट इफ यू स्टार्ट टू थिंक अबाउट इट, जो सोलर पैनल है वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, उसको क्या थ्रू सस्टेनेबल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, वो जो फैक्ट्री जिसमें बन रहा है और सिलिकॉन कोटिंग हो रही है, वो फैक्ट्री जो है किस किस एनर्जी से चल रही है, ठीक है ना, पहली चीज। फिर दोबारा दूसरी चीज, वो पैनल जो है उसकी लाइफ क्या है। अगर उस पैनल की लाइफ 20 साल भी है तो 20 साल के बाद वो पैनल उतार के फेंक दिया जाएगा। जब वो फेंका जाएगा, नाउ स्टार्ट थिंकिंग, देयर आर बिलियंस ऑफ पैनल्स दैट आर बीइंग पुट अप अराउंड द वर्ल्ड, इफ यू डोंट रिसाइकिल देम व्हाट विल बी द इम्पैक्ट। इस बार जिस तरह हमारे समुद्रों में और ओशंस में और दरियाओं में और स्ट्रीम्स में प्लास्टिक है और उसकी वजह से पोल्यूशन है और उसकी वजह से जो मरीन लाइफ है उस पर इफेक्ट हो रहा है, हमारी लाइफ पे इफेक्ट हो रहा है, हमारी सेहत पे इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो माइक्रो लेवल पे चला जाता है जब ब्रेक डाउन होना शुरू होता है, और वो माइक्रो प्लास्टिक जो है हमारी पानी में, हमारे फूड चेन्स में वहां आ जाता है, ठीक है ना, उसको फिर हम इस्तेमाल करें। सो देयर आर प्रॉब्लम्स ऑल अराउंड अस। If we start to look at them and we start to define them and we start to think about them, right, and we start to ideate solutions to them, we can unlock huge amount of opportunities. ये तो बेसिक जो है प्रोसेस है डिजाइन थिंकिंग का। अब इसको हम फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे। जब हम बात करते हैं एम्पैथी की और प्रॉब्लम डेफिनेशन की, तो उसमें दो एलिमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है कस्टमर पर्सोना, कि आपका जो कस्टमर है या जिसके लिए आप सोल्यूशन या प्रॉब्लम जो आप प्रोडक्ट डिफाइन कर रहे हैं उसका पर्सोना क्या है। पर्सोना मीनिंग प्रोफाइल, उसका प्रोफाइल और उसका अपना बिहेवियर, वो कौन है, वो कहाँ रहता है या रहती है, उसकी एजुकेशन क्या है, वो क्या काम करता है या करती है, उसकी इनकम क्या है, उसका लाइफस्टाइल क्या है, उसका माइंड स्टाइल क्या है, उसकी साइकोग्राफिक्स क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं आपने एक एक करके जो है ना वो डिफाइन करने हैं पर्सोना में, कि कस्टमर पर्सोना जो है उसको आपने डिफाइन करना है। इफ यू विल गूगल, यू विल फाइंड मल्टीपल टेम्पलेट्स फॉर कस्टमर पर्सोना। बुक्स भी हैं, टेम्पलेट्स भी हैं, यूट्यूब पे आपको लेक्चर्स भी मिलेंगे, एंड आई वुड encourage you to watch those lectures. Just Google customer persona and you will find immense amount of material जो आपको बताते हैं कि जी आपने कस्टमर को कैसे जो है उसका प्रोफाइल जो है वो डीपन करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग उस पर डीपन करनी है। जब आप समझ जाएंगे कि प्रोसेस क्या है और कैसे करना है और वो टेम्पलेट जो है उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, तो फिर आपने एक्टिवली जिस कस्टमर को आप डिफाइन कर रहे हैं, जिसकी प्रॉब्लम को आप समझ रहे हैं, जिस प्रॉब्लम का आपको एहसास है, उस कस्टमर का आपने पर्सोना जो है बताना है। वो बहुत बड़ा एलिमेंट है, और डिजाइन थिंकिंग वर्कशॉप में सबसे पहली चीज हम वही करते हैं। जब हम एम्पैथी की बात करते हैं तो उस कस्टमर का पर्सोना हम डिफाइन करना शुरू करते हैं कि वो कस्टमर है कौन। ये पहले दो जो एलिमेंट्स थे, एम्पैथी और डेफिनेशन, ये दोनों हम मिला के उस वर्कशॉप में हम करते हैं कि जी कस्टमर पर्सोना हमने बनाना। दैट वी डू एज ए कलेक्टिव एक्सरसाइज कि 3 4 5 लोग जो हैं वो एक कस्टमर का पर्सोना डिफाइन करना शुरू करते हैं, ताकि मल्टीपल मोर आइडियाज कम फॉरवर्ड, मोर डेफिनेशन कम्स फॉरवर्ड, ठीक है ना। वो सारी चीजें सिर्फ एक शख्स की जो है वो काविश ना हो कि एक ही शख्स बैठा सोच रहा है कि अच्छा मैं ये मेरा कस्टमर है। कोशिश करें कि उस कस्टमर को पर्सनालिटी दें, उसको एक नाम दे दें, उसकी एक एज डिफाइन कर दें, उसका एरिया डिफाइन कर दें कि वो कहाँ रहता है या कहाँ रहती है,
तो आई इनकरेज ऑलवेज कि जी आप उसको रियल पर्सन में ट्रीट करें, उसको नाम देना जरूरी है, बजाय कि कस्टमर ए या कस्टमर बी या कस्टमर सी, आप कह नो माय कस्टमर इज सलमा और माय कस्टमर इज यासिर. Salma is 22 years old. Salma studies at Turbat University. Salma lives in this part of Turbat, which tells you the income and the kind of, let's say, the क्या कहते हैं उसको, socio-economic profile of Salma and her family. How many people are living in Salma's home? Does she have siblings, her parents? What does her father do? What does her mother do? What does her brother do? ठीक है ना, ये सारी चीजें जो है ना, ये डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट वन कस्टमर उसके लिए बहुत जरूरी है. तो इस तरह आपने पर्सोना जो है कस्टमर का वो डिफाइन करना है और उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग को डीपन करना है. जब आप कस्टमर का पर्सोना डिफाइन कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी से अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो जाती है कि आपने जो उनके लिए सोल्यूशन बनाना है, जो आइडिएशन की स्टेज है आपकी, अब आप आइडिएशन की स्टेज पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली आइडियाज़ जो है ना वो आपके जहन में आना शुरू हो जाए. तो अब आपने समझ लिया ना, आपको एक एक चीज़ जो है, अब वो सलमा के बारे में एक एक चीज़ जो है वो आपको एक एक आइडिया जो है ना वो देना शुरू करेगी और फिर आइडिया की आपकी डीपर अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो जाएगी. यहां तक हम आगे कस्टमर पर्सोना की डेफिनेशन पे और उसकी अंडरस्टैंडिंग पे. नेक्स्ट है आपकी कस्टमर जर्नी. कस्टमर जर्नी मैप बनाना है. ये भी अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मल्टीपल रिसोर्सेज मिलेंगे, टेम्पलेट्स भी मिलेंगी आपको, वीडियो लेक्चर्स भी आपको यूट्यूब पे मिलेंगे. कस्टमर जर्नी मैप, ये आपने जो है ना रिसर्च करनी है तो आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी. इसका मतलब क्या है? ये वो प्रोसेस है कि जो फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जब आप किसी भी कस्टमर से पहला आपका जो है इंस्टेंस पहला कांटेक्ट होता है आपकी प्रोडक्ट का, आपकी सर्विस का, वहां से लेकर टू कन्वर्ट दैट कस्टमर, कन्वर्ट दैट पर्सन into a customer, and then finally into an advocate and an ambassador for your brand and your product and your service. अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस देंगे, जब मेरा पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, लेट्स अज्यूम आपने कहा कि जी we are going to provide a service in Turbat through which girls like Salma can actually go to university and come back home. Right? That's the only service you're defining because it's a big problem for her. She is dependent on somebody else to take her, bring her back. You're providing that service. Now she decides to use your service, right? So how does she come to know about you? That is the first point of contact. उसको कहाँ से पता चला? अब उसने जब उसको पता चल गया, अवेयरनेस हो गई, अब उसने कांटेक्ट किया आपको. वो कांटेक्ट क्या वेब पे हुआ, क्या आपने कोई मोबाइल वेब सोल्यूशन बनाया या वेब या एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाया, टच पॉइंट बनाया, या कोई फोन नंबर आपने पोस्टर्स लगा दिए तुरबत में, आपने यूनिवर्सिटी में जो है पैम्पलेट्स बांट दिए कि जी एक हम सर्विस शुरू कर रहे हैं, वैन्स हैं स्पेसिफिकली फॉर विमेन, फॉर गर्ल्स, जो उनको यूनिवर्सिटी ला सकें घर से. वो उनको मिल गया, वो इंफॉर्मेशन मिल गई. अब उनके पास एक नंबर आ गया जहां से सलमा कहती है जी मैंने अपनी सर्विस बुक करनी है. जब वो कॉल करती हैं या वो वेब पे एक इंक्वायरी डालती हैं, उसका रिस्पांस मिलता है. क्या एलिमेंट उसको चाहिए होगा कि जी कन्वीनियंस कितनी होगी, ऑन टाइम कितना होगा, कॉस्ट क्या होगी और सेफ्टी फीचर क्या होगा, कंफर्ट लेवल क्या होगा. ये सारे एलिमेंट्स हैं ना उसके जहन में. वो सर्विस उसने इस्तेमाल करनी है, उसके लिए उसने पे करना है. 20 days of the month उसने भी सर्विस इस्तेमाल करनी है. सो फैक्टर्स ऑफ रिलायबिलिटी आर इम्पॉर्टेंट. फैक्टर ऑफ how she feels while she's traveling in that van is important. तो ये उसकी आपने पूरी कस्टमर जर्नी डिफाइन करनी है. From the first point of contact to the time that she's booked the service, are you taking an advance payment? Is the payment going to be in arrears? क्या महीने के एडवांस मिलेंगे, महीने के एंड मिलेंगे, वीकली वो पे कर सकती हैं, डेली वो पे कर सकती हैं, कौन से फैक्टर्स और कन्वीनियंस आप उनके लिए डाल रहे हैं. She may not want to pay on a monthly basis. She may want to pay on a weekly basis.
क्या आपने अपने प्रोडक्ट सर्विस में वो डिफाइन किया है पॉइंट या नहीं, राइट? आपने ट्रांजैक्शन में वो डिफाइन किया है या नहीं? जो वैन है वो कितनी साफ है, वो कितनी कंफर्टेबल है? जो ड्राइवर है वैन का, क्या वो खातून है या मर्द है? मोस्ट लाइकली अगर खातून होगी तो देयर विल बी अ स्लाइटली हायर लेवल ऑफ कंफर्ट, ठीक है ना, वो भी एक फैक्टर है। तो ये पूरी जर्नी आपने डिफाइन करनी है कि ये कस्टमर जो है जिसकी ये प्रॉब्लम है कि मैंने यूनिवर्सिटी जाना है और वापस आना है और मैंने 20 दिन जो है महीने में यही काम करना है, उसकी आप जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसको आप अवेयरनेस देते हैं कि ये एक सर्विस आ गई है, उसके बाद जो है उसकी जर्नी शुरू होती है आपके साथ। And by journey, we're not talking about के आना जाना, we're talking about the total experience that she has, right? At the end of the month, does she extend? Does she decide to do it the next month and the next month? By the third month, Salma will become an advocate for you. That is the highest level in terms of the brand's journey. कि आपका आपने एक पोटेंशियल कस्टमर को टच किया, वो पोटेंशियल कस्टमर को आपने कन्वर्ट किया, उस कन्वर्जन के बाद उसने आपकी सर्विस यूज करनी शुरू की, उसके बाद आपने उसको असेंडेंसी लैडर पे डाला कि वो सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, अब उसने बाजार भी जाना है, तो उसने कहा मुझे बाजार भी जाना होता है, हफ्ते में एक दिन मुझे बाजार जाना होता है, मैंने कभी किसी को विजिट करने जाना है, तो मुझे ये सर्विस जो है क्या मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, तो असेंडेंसी लैडर पे आप उनको ले जाते हैं और फाइनली जो है वो आप उनको उस लेवल पे ले जाते हैं कि वो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट एडवोकेट और प्रमोटर बन गए। तो ये पूरी जर्नी है आपके ब्रांड और सर्विस के साथ कि आपने कैसे उसको डिफाइन करना है। और जो जर्नी सही डिफाइन कर लेता है, जो सेंसिटिविटी दिखाता है, वही लफ्ज एहसास का, एम्पैथी का, उसी की जर्नी जो है वो बेहतर होती है। उसी का जो लेवल होता है ऑफ अटैचमेंट टू द कस्टमर और कस्टमर का लॉयल्टी फैक्टर, दो चीजें आप एंटरप्रेन्योरशिप में आगे चल के आप एक्सपीरियंस करेंगे जो बार बार आप सुनेंगे। वन इज कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, जिसे हम कैक कहते हैं, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। ये वो कॉस्ट है जिसके थ्रू आप एक कस्टमर एक्वायर करते हैं, कि वो क्या कॉस्ट होगी, उसमें मार्केटिंग एक्सपेंस है, आपका सेल्स का एक्सपेंस है, एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंस है, ये सारी चीजें मिला के आप कस्टमर एक्वायर करते हैं। अब जब आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विस है उसमें मार्जिन कभी इतना ज्यादा नहीं होता नॉर्मली इन मोस्ट प्रोडक्ट्स कि आप उस सिंगल ट्रांजैक्शन से वो पैसे रिकवर कर लें। वारिद एक कंपनी आप सबको याद होगी, वारिद का प्रॉब्लम क्या हुआ, वारिद की कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो थी वो हाई थी और वारिद का लाइफ टाइम वैल्यू फ्रॉम दैट कस्टमर वो लो था। मीनिंग मैंने कस्टमर एक्वायर किया था लेट्स से 25,000 रुपए में, कि मेरे 25,000 रुपए खर्च हुए टू गेट समबडी टू पिक अप अ वारिद सिम, कि वो वारिद का कस्टमर बन जाए। अब बिफोर आई रिकवर्ड दैट 25,000 फ्रॉम देम, दे डिसाइडेड टू चेंज द नेटवर्क, चर्न हो गया। तो मेरी लाइफ टाइम वैल्यू लेट से 3 महीने थी, 3 महीने वो कस्टमर वारिद के साथ रहा, 3 महीने में उसने जो है वो 600-800-1000 रुपया खर्चा मेरे साथ, मेरी कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा थी, तो मुझे लॉसेस होने शुरू हो गए। इस वजह से वारिद वाज इवेंचुअली एक्वायर्ड बाय जैज। तो उनका जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट और लाइफ टाइम वैल्यू जो थी वो मैच नहीं कर रही थी। स्टारबक्स का नाम सुना है सबने? हाँ, स्टारबक्स, हाथ खड़ा करें। अच्छा, मैकडॉनल्ड्स का नाम सुना हुआ है? मैकडॉनल्ड का नाम तो सुना होगा, सुना हुआ है? ठीक है। तो इनकी जो एक्विजिशन कॉस्ट होती है वो बड़ी हाई होती है, बट इनकी लाइफ टाइम वैल्यू उतनी हाई है। स्टारबक्स की लाइफ टाइम वैल्यू जो है, पहले उनके कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट पे आ जाते हैं। एक कस्टमर को अक्वायर करने के लिए उनके $2,500 लगते हैं। $2,500 का मतलब हुआ 30 तकरीबन 3-3.25 लाख एक कस्टमर के लिए, ठीक है। तो वो कंपेटिटिव मार्केट में एक्सपेंसेस आ हाई, मार्केटिंग कॉस्ट हाई है, जो उनकी सेल्स फोर्स है उसकी कॉस्ट हाई है, लेकिन उनकी लाइफ टाइम वैल्यू जो है वो $14,500 है। जब मैंने कस्टमर एक्वायर कर लिया एक दफा, तो 20 साल वो मेरी कॉफी पीता रहता है या पीती रहती है। 20 साल उन्होंने मेरी कॉफी पीनी है, उन्होंने दूसरे ब्रांड से कॉफी नहीं पीनी।
इसी तरह अगर आप अपने गिर्द सोचें, जो ब्रांड्स हैं डिफरेंट, डिटर्जेंट्स हैं, सर्फ है, सर्फ की अगर आप सोचें कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या है, कितनी एडवर्टाइजिंग करता है सर्फ, करोड़ों में एडवर्टाइजिंग होती है, उसके अलावा मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन है, उसके अलावा रिटेल मार्जिन है, तो टोटल कॉस्ट जो है वो बहुत हाई है। अब जिस खातून को मैंने कन्विंस किया कि आप सर्फ ही खरीदें, और पहली दफा उसे जाके सर्फ खरीदा, अब मुझे उसको रिटेन करना है। अगर मैं उसको रिटेन नहीं करता तो मुझे लॉस होगा, क्योंकि मैंने उस पर इतने पैसे खर्च दिए, मैंने लेट से 7-8 हज़ार खर्च दिए फॉर एक्वायरिंग दैट वन कस्टमर। अगर वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल सर्फ ना खरीदे ऑन अ रेगुलर बेसिस, जब भी डिटर्जेंट चाहिए हो, तो मुझे नुकसान होगा। तो ये 2 एलिमेंट्स जो है ना आपने जहन में रखने हैं, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट एंड लाइफ टाइम वैल्यू, जिसे हम LTV कहते हैं। अब आप सोचें, अगर जो कस्टमर जर्नी की हम बात कर रहे थे, यहां पर फैक्टर ऑफ लॉयल्टी जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि वो कस्टमर जो है बार बार आपकी प्रोडक्ट खरीदे। कई प्रोडक्ट ऐसी हैं जिसमें बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेशन है, मार्केट फ्रेगमेंटेशन है। उसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा ब्रांड्स हैं मार्केट में, कंपटीशन है मार्केट में, उसकी वजह से मुझे जो है चर्न बड़ा मिलता है। तो डिटर्जेंट्स के मैंने इसलिए मेंशन किया कि डिटर्जेंट्स के मल्टीपल ब्रांड्स हैं मार्केट में, सर्फ भी है, एरियल भी है, एक्सप्रेस भी है, सनलाइट भी है, ठीक है ना, बोनस भी है, ये सारे हैं। फिर उसके अलावा जो है सोप्स हैं, कि जो वॉशिंग सोप्स हैं वो भी डिफरेंट किस्म के हैं। तो मेरे पास कस्टमर के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अब मैंने उसको रिटेन करना है, क्योंकि मैंने जो है कॉस्ट लगाई है, मैंने कीमत लगाई है ऑफ एक्वायरिंग दैट कस्टमर। यहाँ पर आपकी कस्टमर जर्नी, कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग, वो परसोना और कस्टमर जर्नी, दे बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। इसके बगैर मैं नहीं वो डिफाइन कर सकता उसकी कस्टमर जर्नी होनी क्या चाहिए। वो किस तरह जो है मैं कन्विंस करूं उस कस्टमर को कि वो मेरा परमानेंट कस्टमर है। रन इट थ्रू योर माइंड। कोई भी आपने अगर कोई चीज सोची हो कि जी मैंने ये बिजनेस करना है या मैंने इस एरिया में काम करना है, तो आपको समझ आनी शुरू होगी कि ये दोनों एलिमेंट्स कितने इंपॉर्टेंट है। दे बोथ लिंक्ड with empathy also, with the definition of the problem also, with the ideation also। ठीक है, तीनों को मिला के जो है आपका ये दोनों चीजें बननी शुरू होती हैं कस्टमर जर्नी का। आप खुद देखें ना, आपके पास, सबके पास 100% श्योर आपके 100% ओनरशिप ऑफ स्मार्टफोन्स होगी इस रूम में। जितने लोग बैठे हैं सबके पास स्मार्टफोन होगा। अब स्मार्टफोन आप कौन सा ब्रांड चूज करते हैं और किस मकसद के लिए चूज करते हैं और किस वजह से चूज करते हैं? कोई आपको इस वक्त ब्रांड नजर आ रहा है जो सवाए कैमरे के अलावा कोई और बात करता हो? जिसको देखे वो कहते जी मेरा कैमरा बेहतरीन है, ठीक है ना, मेरे स्मार्टफोन में 2 कैमराज हैं, मेरे स्मार्टफोन में 4 कैमराज हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स उसकी जो है वो बहुत अच्छी है। अब पीपल आर बाइंग एप्पल आईफोन्स टू डू व्हाट? टू मेक फोन कॉल्स। फोन कॉल तो मैं किसी से फोन से भी कर सकता हूँ, ठीक है, 3,000 रुपए, 1,500 रुपए, 2,000 के फोन से भी मैं फोन कॉल कर सकता हूँ। SMS वो मैं भेज सकता हूँ, ठीक है ना, फिर वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा ऊपर आए तो मैं सस्ता सा स्मार्टफोन लेके मैं उसके थ्रू जो है मैं फेसबुक भी कर सकता हूँ, मैं शायद इंस्टाग्राम भी कर सकूँ, ठीक है ना, वो है। लेकिन मुझे बेहतरीन कैमरा चाहिए, बिकॉज नाउ इट्स नॉट जस्ट माई फोन, इट इज माई डॉक्यूमेंटर ऑल्सो। मैंने हर चीज डॉक्यूमेंट करनी है, मैंने हर चीज की तस्वीर खींचनी है, मैंने हर चीज को प्रिजर्व करना है। ये मेरा पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन भी है। मैंने उसके थ्रू जो है डिफरेंट चीजें मैंने जो है वो प्रिजर्व करनी है। कहीं भी मैं जाऊं, सबसे पहला काम मेरा ये है कि जी मैं एक सेल्फी खींचूं, सेल्फी को जो है मैं इंस्टाग्राम पे डालूं या मैं अपने फेसबुक पे डालूं, मैं व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो अपने सर्कल के साथ शेयर करूं। ये सारी चीजें मुझे, तो मेरे लिए फोन जो है उसका जो कैमरा है वो बहुत क्रिटिकल हो गया है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स बड़ी क्रिटिकल हो गई। हालांकि फोन, मैंने एक मोबाइल कंपनी में काम किया हुआ है इंटरनेशनली, तो वहां एक चीज बड़ी सिंपल थी कि एवरी फोन इज ओवर इंजीनियर्ड। उसमें इतने फीचर्स होते हैं जो कोई इस्तेमाल ही नहीं करता। मुश्किल से आप 15-20% फीचर्स इस्तेमाल करते हैं। अपने स्मार्टफोन को आज देखिएगा,
तो देखें उसमें कितने फीचर्स हैं और आप कितने फीचर्स इस्तेमाल करते हैं। फिर हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। कौन सी एप्लीकेशन है जो हम डेली इस्तेमाल करते हैं, एवरी आवर इस्तेमाल करते हैं? कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो मैं शायद हफ्ते में एक दफ़ा इस्तेमाल करूं? कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो मैं महीने में एक दफ़ा इस्तेमाल करूं? तो हम अब आ रहे हैं वापस उस बात पे, एम्पैथी पे। वो कौन सी एप्लीकेशन है जो आप डिज़ाइन करेंगे जो हर घंटे इस्तेमाल हो, जिसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि वो कंटिन्यूसली इस्तेमाल हो। स्मार्टफोन में अगर आप देखें तो कैलेंडर का फीचर है। हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली यूज द कैलेंडर फीचर? उसमें नोट्स का फीचर है, उसमें टास्क लिस्ट का फीचर है, बहुत सी ऐसी हैं प्रोडक्टिविटी के फीचर्स हैं जो फोन में बिल्ट इन आते हैं, जिसे हम ओईएम कहते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो अपने फोन में डाल के आपको देता है। लेकिन सारा फीचर्स आप इस्तेमाल नहीं करते, कुछ फीचर्स आप इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली हम कॉल करते हैं, हम मैसेज करते हैं, और हम व्हाट्सएप अगर हमारे पास है या फेसबुक मैसेंजर है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं कि हम मीडिया शेयर करें, एक दूसरे की तस्वीरें भेजें, आर्टिकल्स भेजें, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बहुत ज़्यादातर फीचर्स हम इस्तेमाल नहीं करते, बट वो अवेलेबल हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। बिकॉज एक फियर है कि अगर मेरे फ़ोन में ये फीचर ना हुआ तो शायद कोई इसको नहीं खरीदेगा, वो सोचेगा अगली दफ़ा, ठीक है ना। तो इस तरह देखने की जरूरत है। हाउ मेनी ऑफ इन दिस रूम हैव एन आईफोन? सिर्फ हाथ उठाइएगा। सो वी हैव अ फ्यू। तो oh, we have quite a few. Acha. We have quite a few. So people who use an iPhone, right, you have to ask them and say, why do you buy such an expensive phone? There are multiple reasons. One, it's a statement. When I have an iPhone, I'm making a statement that I use the best. ठीक है ना, एक तो ये है। दूसरा ये है कि मेरी मुझे बिलीफ है, फेथ है उसमें, उसके इंजीनियरिंग में मुझे फेथ है, उसके डिजाइन में मुझे फेथ है कि दिस इज द बेस्ट दैट मनी कैन बाय, राइट। मैं वो भी है। जब आईफोन आप खरीदते हैं, उसका जो पैक है, उसके पैक को अगर आप अभी बैठ के सोचिएगा, अगर घर पे पड़ा हुआ पैक, तो दोबारा उसको जाके देखिएगा। इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुली डिजाइंड पैकेजिंग। वो परफेक्ट फिट होता है। जब उसको आप उसका ऊपर का पोर्शन खींचते हैं ना, तो आपको एहसास होता है कि वो किस खूबसूरती से वो पैकेजिंग बनाई गई है। अब मेंटली जो है, आपके जेहन में ये क्रिस्टलाइज होना शुरू होता है कि ये वाकई जो है, ये कंपनी ऐसी है जिसको मेरा एहसास है, जिसको ये पता है कि मैं जब ये पैकेज खोलूंगा या खोलूंगी तो मुझे क्या फीलिंग होगी उससे। फिर मुझे फोन नजर आता है और मुझे उसके साथ एक पिन नजर आती है, एंड दैट्स इट। कोई ऑपरेटिंग मैनुअल नहीं है उसका। एक जमाने में जब फोन आप खरीदते थे तो उसके साथ पूरी एक बुकलेट आती थी कि इसको आपने सेटअप कैसे करना है, इसको आपने क्या करना है, इसके ये चीज कैसे करनी है, वो चीज कैसे करनी है, चार्जिंग कैसे करनी है। यू डोंट नीड दैट with an Apple phone. And now everybody else is trying to follow that because the phone comes plug and play, ready to use. All you have to do is put your SIM in. That's it. And there is a charging device also with it. So you know exactly where to plug it in because you don't need a manual for that. So now again, they've reinforced in your mind. Just look at the customer journey. Just think about it, of the customer journey that they're defining. Apple's customer journey. कि कितना खूबसूरत उसका पैकेज है। उसके बाद फोन आप उठाते हैं हाथ में, आपकी उसकी फीलिंग क्या है, उसकी एजेस जो हैं वो कर्व्ड हैं, वो किस तरह आपके हाथ में फील होती हैं। उसके बाद फिर जब आप उसको पिन के साथ उसमें वो डालते हैं, अपनी सिम डालते हैं और उसको आप ऑन करते हैं, इट्स मैजिक, राइट। सो ये कस्टमर जर्नी है जो एप्पल आपको देता है। उसकी वजह से every time there's a new Apple phone and it is immensely pricey, the same functions you could get with a phone which is 1/5 the cost, but you have that belief in Apple that they will give you the best product and it will last. That's the other side of it. वो glitchy नहीं होगा, उसमें glitches नहीं होंगे, वो बहुत ज़्यादा जो है engineered है to a level that it will not
let you down, right? So that is customer journey, कि आपने कितने एहसास के साथ जो है एक एक एलिमेंट उसका जो है ना वो किया हुआ। स्टीव जॉब्स वाज ऑब्सेसिव अबाउट द कस्टमर जर्नी। अगर आप एप्पल के स्टोर में जाएं बाहर, यूएस में पर्टिकुलरली, या कहीं और भी जो उनके अपने स्टोर्स हैं, तो उसका जो फ्लोर है ना, मैं उसमें न्यूयॉर्क में 5th एवेन्यू पे उनका बहुत बड़ा स्टोर है, फ्लैगशिप स्टोर है, वहां मैं गया हूँ। तो उसका जो फ्लोर है, उसका जो मार्बल है वो इटली से आता है, फ्रॉम वन क्वारी ओनली, एक क्वारी से वो आता है वो मार्बल। उसका ना सिर्फ एक क्वारी से आता है, जिसका मतलब है कि एक ही किस्म का मार्बल है। वो उन्होंने डिफाइन किया हुआ उस क्वारी के लिए कि आपने हर मार्बल की जो टाइल है, जो बड़ी बड़ी टाइल्स हैं, उसको नंबर करना है, ताकि वो उसकी जो सीम्स होती हैं मार्बल में, लाइनें जो होती हैं, वो लाइनें मैच करें एक दूसरे के साथ। तो किसी ने स्टीव जॉब से कहा कि भाई ये तो फर्श है, फर्श में इतनी, वो उसने कहा एप्पल का स्टोर का फर्श है भाई, इट हैज टू हैव दैट, इट हैज टू हैव दैट परफेक्ट डिजाइन एलिमेंट। जब मैं एप्पल के स्टोर में आऊं, दैट इज पार्ट ऑफ माय कस्टमर जर्नी, मुझे वो एहसास होना चाहिए। जब आप एप्पल के स्टोर में जाते हैं, जो उनके जो सेल्स के लोग हैं, वो कभी आपको प्रोडक्ट बेचने की कोशिश नहीं करते, वो आपको समझने की कोशिश करते हैं। वो आपसे आके बात करते हैं कि आपका दिन कैसा था, आप करते क्या हैं, आप इंजीनियर हैं, आप मार्केटर हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपके का कौन सी प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करने के लिए एप्पल के स्टोर में आए। दे एक्चुअली हैव दैट कॉन्वर्सेशन विद यू। दे डू नॉट कम एंड से ये हमारा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है, इसको आप लेना। फर्स्ट दे टॉक टू यू एंड दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपकी प्रॉब्लम कौन सी है जिसको आप सॉल्व करने आए एप्पल के स्टोर में। देन दे स्टार्ट टू look at what is the best fit for that, and then they start to get you to experience that product, then they walk you through it, right? That is the customer journey that you should aspire to when you're trying to develop a product and a service. Any questions? There's somebody at the back waving, or right corner, right at the back. You've turned around, you're looking back. No problem. No questions. Yes, sir. Yes. जी, One by one, please. जो भी क्वेश्चन है आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अक्सर ये करते हैं कि ब्रेन स्ट्रॉमिंग करते हैं, हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम ये चीज़ करेंगे, मींस मैपिंग वगैरह करेंगे, लेकिन हम ट्रैक में जा रहे हैं, कुछ ऐसे चीज़ें होती है जिसकी वजह से हम डिसअपॉइंट होते हैं और अपने काम बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो ऐसा कोई चीज़ है जो हमें मोटिवेट करे और हमारे पेशेंट्स को मोर इंस्पायर करे, ऐसा कोई चीज़ है कि हम अपने साथ कर सकते हैं? वही एक लफ्ज एम्पैथी और एहसास का। अगर आप एहसास लेके चलेंगे ना, तो कभी आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, क्योंकि एहसास के साथ आप पहली चीज जो करेंगे वो ये करेंगे कि जिसके लिए आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, वो आप समझेंगे, उनको समझेंगे, उस प्रॉब्लम को समझेंगे। देखिए, मुश्किलात तो हर चीज में आती हैं, ठीक है ना। कौन है जो उन मुश्किलात को सर करते हैं, उनसे आगे जाते हैं, उनको डिफीट करते हैं। मैं बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी में मैं इस्लामाबाद में गया था, वहां पर एक इवेंट था, और वो इवेंट था जिनमें 5 लोग थे जो महरूम थे फ्रॉम विजन। दे कुड नॉट सी at different stages in their life. They had experienced some, a couple of them were born with that disability, but they developed different abilities. जो हम कहते हैं ना differently abled people, वो असल में सच है। उनमें से एक साहब थे who climbs mountains, वो माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, कोपेमाई करते हैं। उन्होंने शिमशाल में जाके माउंटेन क्लाइंब किया हुआ है, and he is visually impaired, right? So he's differently abled himself,
his other senses, they come into function. There was one young man over there जो adventure club चलाता है. Adventure club, right? He helps people jump out of planes. He does hang gliding. He does hang gliding himself. ठीक है ना? तो ये, when you see people like that, you start to realize कि हमें खुदादाद सलाहियत दी गई है, बहुत सी सलाहियतें दी गई हैं, मल्टीपल सेंसेस दिए गए हैं. हमारी सेंस ऑफ स्मेल है, हमारी ऑरल फैकल्टी है, हम सुन सकते हैं, हमें जो है टेक्टाइल, हम चीज को हाथ लगा के महसूस कर सकते हैं कि ये टेक्सचर कैसा है, ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है. ठीक है ना? ये कौन हमें बताता है? हमारा ब्रेन बताता है ना कि ये सख्त है, ये नरम है. तो ये सारी चीजें आपने सोचनी है. सबसे पहली चीज और सबसे बेहतरीन चीज है कि जब आप में एहसास होगा तो कभी भी आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी. आप में वो जज्बा होगा, पैशन होगा, आप जो है you'd be prepared कि जो आपकी स्किल है, जो आपकी एजुकेशन. देखिए, people sitting in this room, you're all in a university. Do you realize that only 4% of Pakistanis actually make it to a university? 4% only. What does that mean? You are privileged. You are of that 4% privileged Pakistanis who have education, who have university education. 4%. So don't you have a responsibility? Okay, बहुत sir. बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना. अब Can वो I ask? इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उसका मतलब ये है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप डिस्पेयर में जाएं या आप डिप्रेशन में जाएं या आप कहें अच्छा ये काम नहीं हुआ तो मैं जो है ना बस इसको छोड़ दूं. वो तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है. सबसे बड़ा टीचर जो होता है ना, वो फेलियर होता है. मैंने बहुत से प्रोजेक्ट्स किए हैं. Not every project has succeeded. Out of the investments I made, and I made investments, I made 7 investments in tech companies, in young people like yourself, 7 of them. Only 2 of them are right now currently running. 5 of them have failed. But those 2 are growing, and those 2 are impacting people. Another 1 or 2 are kind of trying to survive. But I'm not disappointed. Right? Reason being, because when you believe in something, कि यार ये काम जो है ये करना बहुत जरूरी है, मैंने इसलिए किया. मैं इसलिए नहीं कर रहा था कि इससे मैं कोई करोड़ों रुपए कमा लूंगा. दैट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट आई डू. उसमें से हो सकता है one company, another company, one company is Patari, which is a audio platform. Right? So 4 years ago it was launched. 2 years ago it went through a very massive problem. It is now coming back literally from the dead. Right? So कई दफा होता है कि प्रॉब्लम्स आती हैं और फेलियर्स होते हैं. यू मस्ट एग्जामिन द फेलियर, यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड स्टडी द फेलियर. सक्सेस जो है ना, सक्सेस एक्चुअली इज द वर्स्ट टीचर. क्यों? आपको ये नहीं पता होता कि क्यों सक्सीड हुआ है. फेलियर में आपको पता चल जाता है कि इसकी वजह से फेल हुआ है. राइट? सो आपने हमेशा उस हिसाब से उसको देखना है. एवरी फेलियर इज अ टीचर. You will realize what went wrong. मुझे पता है कि वो कंपनीज जिनमें मैंने इन्वेस्ट किया था, प्रॉब्लम क्या था, कहाँ से उसका जो है ना वो फेलियर इनिशिएट हुआ, कहाँ वो डीपन हुआ. ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है, जस्ट हैविंग अ स्टॉर्म, इमेजिनेशन इज अ वेरी गुड थिंग. राइट? आइंस्टाइन भी कह गया कि मोर देन नॉलेज इट इज इमेजिनेशन दैट ड्राइव्स द वर्ल्ड फॉरवर्ड. समबडी हैज टू इमेजिन समथिंग, राइट, टू टेक द वर्ल्ड फॉरवर्ड. There is another very interesting study जो स्टैनफोर्ड से हैं, प्रोफेसर हैं उनकी. वो कहते हैं 4 kinds of people have driven this world forward. 4 kind of people. And you'd be amazed, you'd be shocked when I tell you what kind of people. Number 1, he said, are lazy people. Can you imagine that? Why? Because lazy people want to do more by expending less energy. They want to do more. They want to get more out of the energy that they expend, whether it's mental energy, it's physical energy. Number 2, greed. Greedy people. They want to make more value out of the skill that they have or the knowledge that they have. Number 3, people who are afraid. जो डरपोक लोग होते हैं, वो अपने डर को छुपाने के लिए, वो अपने डर को जो है उसको कन्वर्ट करने के लिए वो कोई ना कोई चीज जो है
वो अपनी ईजाद करते हैं या इनोवेट करते हैं, ठीक है ना, इसमें जिद्दत करते हैं। ये नंबर 4, दोज हु कैन इमेजिन, दोज हु ड्रीमर्स. It's good to imagine. I've recently had a very young person come and see me for mentoring. He's an engineer. वो वाटरलू से, कनाडा से उसने अपनी डिग्री की. He was involved in the team that developed the sensors for the Mars rover. जो मार्स पे जो व्हीकल है उसके सेंसर्स की डिजाइन टीम में वो था. But that is not what he wants to do. He doesn't want to be an engineer. His family was in the clothing business. कपड़े के कारोबार. Azan Cloth Market in Lahore, which is one of the largest cloth markets in Asia. वो उसने आके शुरू किया. अब वो इंजीनियर है, बहुत इंटेलिजेंट है. मेरे पास वो आता रहा है पिछले 3-4 महीनों से. हर हफ्ते आके मेरे साथ एक सेशन लेता है वो. उसने मुझे, और वो हर चीज़ में वो इंजीनियरिंग के हिसाब से सोचता है. वो कहता है मुझे कोई रिसोर्स दे दें, मुझे कोई किताब बता दें, मुझे कोई लेक्चर बता दें, मुझे कोई यूट्यूब का लेक्चर बता दें, मैं जाके देखूँ. So recently he came, he said, what do you advise me to do beyond what I'm doing? तो मैंने उसको कहा यार once a day take a walk. He said, what do you mean? मैंने कहा निकलो बाहर, चहलकदमी करो, किसी पार्क में जाओ, घूमो फिरो. उसने कहा उससे क्या होगा? मैंने कहा तुम्हारा माइंड जो है ना वो वॉन्डर करेगा. योर माइंड विल वॉन्डर. वो इधर उधर सोच जाएगी, इमेजिन करोगे. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, नॉट जस्ट हार्डकोर इंजीनियरिंग. So whenever you are thinking, जो आप कह रहे हैं ना ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या है? कि मैं बैठ के या एक in a group we sit down and we start to ideate. Brainstorming is ideation, but ideation should not be without that purpose of what problem I am trying to solve. Right? Normal mistake होती है कि you get an idea and you start running with it. आपके ज़हन में एक आइडिया आया, आपने कहा बस यही है, इससे बेहतर किसी को आइडिया आया ही नहीं आज तक. ठीक है ना, ये कभी हुआ ही नहीं है. ट्रस्ट मी, हर चीज हो चुकी है, नया तरीका हो सकता है उसी चीज को करने का. तो आइडिएशन को पहले ना लाइए, आइडिएशन को थर्ड स्टेप पे लाइए. एम्पैथी को पहले लाइए, फिर उसका जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग को लाइए, फिर आइडिएशन पे जाइए. फिर आपका ब्रेनस्टॉर्म जो है ना वो इफेक्टिव होगा. ठीक है. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. सर, अगर किसी को किसी प्रॉब्लम के हिसाब से आपसे कांटेक्ट करना हो या कुछ मतलब आइडियाज देने हो तो आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? अच्छा, most people find me on either Facebook or LinkedIn, but since I'm already speaking to you, you can write down my email address. वो आप ले लें. सर आप बोलें. Is F Sherjan. F is my first name, Faisal, and Sherjan, FSHERJAN, Sherjan, one word, at gmail.com. Okay, thank you, sir. You're most welcome. सर आप अच्छा ये बताइए कि have all of you now thought of a problem? Just raise your hand if you have. Any problem? सर प्रॉब्लम्स तो बहुत है लेकिन कोई समझने वाला नहीं. अच्छा, अगर problems बहुत हैं, that means we are in the right place. Yes, sir. You are A single thing is bundle of problems. हाँ जी. सर मैंने कहा प्रॉब्लम्स का जड़ तुर्बत है. यहाँ पर सब कुछ बहुत से मसाइल भी यहाँ पर आपको ढूंढने को मिलेंगे. देखिए हम कहते हैं हमेशा NIC लाहौर में, I was there for 3.5 years, even NIC Quetta, that problems are good things, right? Problems are always good things because that means there is a need. Somebody has a need. किसी की जरूरत है, किसी को तकलीफ है. वो तकलीफ किस किस्म की है, ठीक है ना, उसको देखने की जरूरत है, उसको डिफाइन करने की जरूरत है.
वहां से आप शुरू करेंगे तो आपको नजर आनी शुरू हो जाएंगी चीजें कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब आप अपनी स्किल अप्लाई करेंगे। तुर्बत यूनिवर्सिटी में यू हैव टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, आई एम श्योर CS है, कंप्यूटर साइंस हाँ सर है। So you have business studies? Business studies भी है। So you have sociology or let's say जो soft sciences हैं, economics है, सोशियोलॉजी अभी so there is a varied skill set in this room. There are different skills in this room, right? So if you have a different skill pool, when you see a problem, you just think about it, you get collective, right? Individuals normally problematic होता है कि एक इंडिविजुअल इनिशिएट कर सकता है, एक प्रॉब्लम को शेयर कर सकता है कि जी ये प्रॉब्लम है, इसका सलूशन बनेगा तो बहुत अच्छा काम होगा। अभी जो हमने कुछ बातें की हैं, हमने बात की है अर्बन मोबिलिटी की, ठीक है ना। अर्बन मोबिलिटी तुर्बत में भी है। जितना बड़ा शहर हो, छोटा शहर हो, कस्बा हो, प्रॉब्लम तो है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक है ना। हमें आदत नहीं है कि हम 1 किलोमीटर भी वॉक करें, हमें कोई ना कोई जो है ट्रांसपोर्ट चाहिए होती है। इज देयर ए प्रॉब्लम ऑफ दैट काइंड इन तुर्बत और नॉट? बच्चों ने स्कूल जाना है, ठीक है ना। इज इट अ प्रॉब्लम और नॉट, राइट? फूड प्रोडक्शन है या खाना बनाना है, लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, क्या उनको खाने की जरूरत होती है दोपहर को या नहीं होती है? क्या उनको घर का खाना चाहिए या बाजार का खाना चाहिए? ठीक है ना, इस किस्म की वो है। तो यू कैन लुक एट दैट। हेल्थ का आई डोंट नो व्हाट इज दी, क्वाइट फ्रैंकली आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे नहीं इतना अंदाजा कि तुर्बत में हॉस्पिटल है, किस लेवल का है, क्या है, डॉक्टर्स हैं। बट जस्ट इमेजिन, आई मीन आई हैव बीन टू अ विलेज इन सरगोदा, राइट? छोटा सा गांव है, बल्कि क्लस्टर है 3 गांव का, 12,000 लोग रहते हैं उसमें, और वहां पर एक टेलीमेडिसिन सेंटर है, एक कमरा है, उसमें एक टेक्नीशियन है, वो भी रिटायर्ड एयरफोर्स का टेक्नीशियन है, जिसने एज ए मेडिक उसने ट्रेनिंग ली। वो डॉक्टर नहीं है, वो टेक्नीशियन है, वो उस सेंटर को चलाता है। उसका कनेक्शन जो है वो लाहौर में गुलाब देवी हॉस्पिटल है। अब गुलाब देवी हॉस्पिटल इज अ 70-80 नियर अबाउट 70-year-old हॉस्पिटल, 70 साल पुराना हॉस्पिटल है वो। उसमें टॉप डॉक्टर्स हैं, top specialists है। They're connected to that community in Sargodha through that one room which has one telephone, which has actually one internet connection. And the quality of medicine that you would get, or quality of consultation that you would get from a doctor in Gulab Devi, you're getting that sitting in Sargodha, in a village. Recently, I've had a conversation with Sadaf Abid, who runs Circle. Circle is a company that does 2 things. एक वो She Loves Tech का कंपटीशन कराती हैं हर साल पाकिस्तान में, यही She Loves Tech के अंडर ही हो रहा है। This session is organized by Circle and She Loves Tech, right? दूसरा वो टेक करो का उनका एक इनिशिएटिव है जो बच्चों को कोडिंग सिखाता है, स्पेशली यंग गर्ल्स, उनको कोडिंग सिखाता है। तो she had recently gone to Gilgit Baltistan. तो सैटरडे को मेरी उनसे मीटिंग हुई आफ्टर शी इज कम बैक फ्रॉम देयर, कि वहां पर गिलगित बल्तिस्तान में किस किस्म के बिजनेसेस लॉन्च किए जा सकते हैं। So I was talking to her that telemedicine is one of those businesses. If a young girl, right, who has some education, gets trained as a technician, she can actually run a telemedicine center from any village in Gilgit-Baltistan. You could do it from any place in Quetta, Balochistan. In most places, you will have some connectivity. ठीक है जी। जी रिहान, are you here? कौन? Who's our host? Yeah. Riyan is, I think, Riyan is. Mom, are you here? Yes, I'm here. Oh, Mom. Yeah. Is that that just concludes it? Sorry, what? I said that concludes this session unless they have questions which I can answer for them. Sure. If anyone has any questions, आप लोग पूछ लें इस वक्त.
Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम सलाम. Sir, I want to ask that, as you said, our society thinking is so negative in Pakistan and Balochistan also, that women chooses Kareem's or Uber for their safety. Yeah. So there are other fields like women want to start their businesses or they want to do something for the society, but that society thinking makes them to quit. So how we can ignore these society thinkings and we should start our business or another thing? देखिए वी नॉट टॉकिंग अबाउट इग्नोरिंग, ठीक है ना, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं करना आपने. फ्रिक्शन जो है उससे प्रॉब्लम होती है. जब भी घर में प्रॉब्लम होती है, घर में फ्रिक्शन होता है. यू नो, गर्ल वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड हर पेरेंट्स विल नॉट इनकरेज हर, हर ब्रदर विल नॉट इनकरेज हर. ये हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है, देखा हुआ है. सो हाउ डू यू break through that? How do you change that thinking? At times, there is a very economic reason for it, because the parents are thinking कि यार ये बिजनेस शुरू कर रही है, we will invest in this business, इसको हमसे सपोर्ट चाहिए. इन्वेस्टमेंट में लाख रुपए भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है. कल ही इसकी शादी हो जाएगी, because that is in our mind कि जर्नी जो है, इसकी लाइफ जर्नी जो है वो यही है कि कल इसकी शादी हो जाएगी तो फिर बिजनेस का क्या होगा. Will her in-laws, will her husband allow her to run the business or not? If the answer is no, तो क्या ये बिजनेस छोड़ के हमें दे के चली जाएगी और हमने उसके साथ क्या करना है. ठीक है ना. तो ये these are real questions that are in the mind, and it will take a while. It won't happen overnight. We will have to work at it constantly. अब ये जो मैं बात कर रहा था आपसे टेलीमेडिसिन सेंटर की और सारी चीजें, there is a company in Karachi that I know. अब वो उसका बिजनेस बिल्कुल डिफरेंट था. ठीक है ना. वो बेसिकली ही इज अ टेक्नोलॉजिस्ट और वो ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजीज पे काम करता था. बट इन 2007 the technologies that he was developing, or the compression technology that he was developing to deliver video over thin paths, right, he stumbled on to telemedicine. और उसने पहला टेलीमेडिसिन का एक यूनिट बनाया. उसने एक सुजुकी ली, उस सुजुकी में चीज़ें कुछ फिट की, एक टेक्नीशियन लिया और उसको इंटीरियर सिंध में भेजा. और उसमें एक ईसीजी की डिवाइस थी, उसमें जो टेक्नीशियन था वो ट्रेन था कि वो ब्लड प्रेशर ले सके, सारा कुछ कर सकते. कनेक्शन बन गया विद द इंडस हॉस्पिटल इन कराची, विच इज डिजाइंड टू बी अ पेपरलेस हॉस्पिटल. तो वहाँ के डॉक्टर्स जो है दे वर यूज्ड टू यूजिंग डेटा टू डायग्नोज. ठीक है ना. वो करना शुरू किया. That is one part. But the beautiful part is done now, and this has happened in the last 4 or 5 years. Lady doctors, girls who went to medical college, got a degree, and then did not practice medicine because वो घर में confine हो गई for whatever reason. कुछ बाहर चली गई, शादी हो गई, उन्होंने नहीं किया. He has brought 800 of them back. When I say he's brought 800 of them back, using his platform, those 800 lady doctors are now serving clients all over the world. जर्मनी में भी उनके क्लाइंट्स हैं, मिडिल ईस्ट में उनके क्लाइंट्स हैं. कुछ वो डॉक्टर्स जो हैं वो अफ्रीका में बैठी हुई हैं, कुछ मिडिल ईस्ट में हैं, और पाकिस्तानी. डाउ मेडिकल कॉलेज के साथ उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया जो उनकी रिफ्रेशर ट्रेनिंग करता है. 3 महीने की रिफ्रेशर ट्रेनिंग होती है. उसके बाद दोज डॉक्टर्स बिकम इफेक्टिव अगेन. अब स्टैनफोर्ड मेडिसिन स्कूल के साथ उनका कनेक्शन बन गया है. जो इस्लामिक बैंक है उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया है. ठीक है ना. ये सारी चीजें हुई हैं. सो लुक एट व्हाट ही इज अचीव्ड. द डॉक्टर्स who had been invested on, the state invests on every doctor, you know, subsidized है studies. वो खवातीन जो, और and we know there is a very large percentage of women who take up medicine, who become doctors, but then they don't practice. So all that knowledge is lost to the community. अब घर में बैठे, मैं घर में बैठे अगर मेडिसिन प्रैक्टिस कर सकती हूँ तो मेरी पेरेंट्स भी मुझे अलाउ करेंगे, मेरे इन लॉज भी अलाउ करेंगे. उनको प्रॉब्लम क्या है कि जी आप बाहर नहीं जाएंगे, क्लिनिक नहीं बनाएंगे, घर में लोग नहीं आएंगे, ये नहीं होगा.
जरूरत ही नहीं. So use technology to solve problems. ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना. एक्सेस टू फाइनेंस इज द प्रॉब्लम फॉर फीमेल एंटरप्रेन्योर्स. इसीलिए शी लव्स टेक जो आप जिसका हिस्सा है, जो आज ये हो रहा है, शी लव्स टेक का पर्पस यही है कि खवातीन जो हैं ट्रेडिशनल जो बिजनेसेस थे कि जी कढ़ाई करनी है और सिलाई करनी है और कपड़ा बेचना है और खाना बना के बेचना है, तो उससे आगे जाएं. और जो इंजीनियर्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स हु टेक अप इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेस, who learn how to code, who learn how to develop applications. They can do it from anywhere. They should be able to do it from anywhere. So it's a journey. It's a struggle. Gradually, those barriers are breaking down, and economics is going to break those barriers down. Now, with the cost of living, there is hardly any family that can survive on a single income. Single income family की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. या तो जॉइंट फैमिली में सर्वाइवल है या मल्टीपल इनकम फैमिली में सर्वाइवल है, ठीक है ना. इफ द हस्बैंड एंड वाइफ वर्क, बोथ ऑफ देम वर्क, they will create a better life for their children because they will be able to provide better education, they'll be able to provide better home environment, right. वो सारी चीजें जो एक बच्चे को पेरेंटिंग की उसमें आता है कि जी उसकी नशो नुमा में, उसकी तरबियत में, उसकी लाइफ जर्नी में वो जो कंट्रीब्यूशन होती है, अगर खातून की कंट्रीब्यूशन नहीं होगी तो दैट जर्नी विल बी हाफ कंप्लीट, राइट. उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी. So economics is going to change that. I have experienced it. We do micro entrepreneurship training also, right? हमने कोटा में भी की micro entrepreneur training, and you'd be amazed. There were 22 girls who were selected for that micro entrepreneur training. It was only about for women. Out of those, 19 actually completed that training. 19, and they were not all from Quetta. Out of those 19, 11 of them got grants. 1 million रुपए की grant थी. 11 of them out of 19 got grants. When we completed the training to make a pitch for the grant, those 19 came to Lahore. Out of the 19, 17 had not been out of their hometown before that. Only 2 had traveled before. 17 of them came. 17, right? We had to take care of them. They had to be provided with a very comfortable environment. Their parents had to be convinced, right, that they would have a comfortable environment, because the age group was only up till 25. So they were all younger than 25. Most of them were not married, right? Because of that, they, all these factors had to be looked at. And they came, and 11 of them, which is a very high percentage, qualified for that grant, right? So ये सारी चीजें हैं. And programs like She Loves Tech, you must keep a sight on this, because this is an international program, right? ये China से originate होता है. 30 countries participate in it. 6th and 7th, there are the finals. 15 companies have been selected, right, through multiple rounds, which went all over Pakistan, right? Because this time it is all online, so we could take it to all of Pakistan. उसमें जो है, अब ये 15 companies में से एक company जो है, that will qualify for the finals in China. राइट. सो बल्कि 6-7 को ये है, और आई थिंक 10th से जो उनका बूट कैंप शुरू हो रहा है, जो उसमें से क्वालिफाई होगा, जो भी कंपनी क्वालिफाई होगी, एंड दीज आर फॉर फीमेल एंटरप्रेन्योर्स. तो उस कंपनी में द फीमेल फाउंडर और शेयर होल्डर हैज टू हैव सब्सटैंशियल शेयर होल्डिंग इन दैट कंपनी. ये नहीं हो सकता कि मैंने वैसे ही किसी को आगे कर दिया कि जी ये जो है ना, ये और होता है कई दफा, ठीक है ना, कंपनीज आती हैं जिसमें वो खातून को आगे कर देते हैं, हालांकि उसका ना शेयर्स होते हैं उस कंपनी में, ना वो डिसीजन मेकर होती है. सो वी वेरी केयरफुली, राइट, वी गॉट बैकग्राउंड्स एंड ऑल दैट, कि जो पिच कर रहा है, शी इज एक्चुअली either the co-founder, the founder, or has a substantial share in the company, over 30%. 30% से कम नहीं होना चाहिए. Right? So these things will help. And yes, mobility is a problem. We would love to see women being able to move around themselves, whether it's on a cycle, whether it's on a scooter, whether it's on a motorcycle, driving themselves, right? But we will get there. अब मैं लाहौर में देख रहा हूँ, I've actually started to see a lot of young women, right, scooters are there, right, and they're comfortable riding a scooter. So things will change, gradually they will change, right? कहीं ना कहीं हमने accelerate भी करना है उस change को, कहीं ना कहीं हमने जो है ना barriers को knock down करना है.
So if the barrier is a social barrier, a cultural barrier, so we need to find a solution to that barrier. Or starts with that, again, that feeling of empathy, एहसास कि ये आपका नाम क्या है? लिखा लिखा इकरा? सर हाँ? लिखा लिखा लिखा। अच्छा, अब देखिए ना, आप कुछ करना चाहती हैं, राइट, और आपके सामने hurdles हैं, barriers हैं. That barrier may be a social cultural barrier. So how do we empathize with you? How do we say, okay, she wants to do something, how do we help her do this? What is it that she needs? Does she need support to talk to her family? We've done that, right? I've done that. Not just women, even boys. कई दफा हुआ कि जी मेरे पास एक फाउंडर था, बड़ा कमिटेड था, सब कुछ था. तो I've actually had that instance. And he came to me and he said, I have a problem. And I said, what's going on? He said, I'm engaged. I said, ठीक है. He said, now my in-laws are putting pressure to get married. और मेरी कंपनी तो अभी जो है मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मैं अपने सोल्यूशन को डेवलप कर रहा हूँ. मैंने कहा अच्छा, let's invite your father-in-law for a cup of coffee. We actually did that. And we realized that we need to do it with more of them. So we started to do a day with parents, जिसमें हमने जितने हमारे इंक्यूबेटर्स थे उनके पेरेंट्स को इनवाइट किया to come and see what was happening, what their children were actually doing, right? So they came, and almost every founder came to me after that and he said, that is the best thing that could have happened. Now my parents understand what I'm doing. There was a young girl there called Zille. Zille was she wanted to do something in waste recycling. Now she had done her MPhil in that, but her parents were putting pressure on her to get married. And she said, I want to first develop my business, because this is a big opportunity. It's a big problem. So her parents came and, they saw what she was doing. They saw the environment she was working in, and they've allowed her to do that. She's now got her company to a stage, right, which is actually, she's got investment of millions of rupees in that company. Now her parents are proud of her. They're actually very proud of her that she's solving a real problem, right? So gradually we have to work through all these problems and we have to solve them. There's always a solution. Thank you. Sir, I have a question. जी. First Sir, tell me your name. Yes, sir. आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर राहिद उल्लान है सर. Okay. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि तुर्बत में सर a lot of problems are there. If जी. you have the solution but no one is ready to invest, what would you say like this regarding? अच्छा, इसमें देखें, हाँ, this is a problem we do come across, right? I gave the example of Swabi for a particular reason. मैंने स्वाबी का क्यों एग्जांपल दिया? ठीक है, स्वाबी may be 20%, 30% bigger than तुर्बत. I'm not sure, but I would imagine कि जी इतना ही फर्क होगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं होगा. तो कहीं ना कहीं से आपने शुरू करना पड़ता है. आप माइक्रो लेवल से शुरू करें, इट डजंट मैटर. पहले दिन ही आप यूनिकॉर्न नहीं बन जाएंगे, $1 बिलियन कंपनी नहीं बनेगी. सबसे बड़ी कंपनी इस वक्त कौन सी है दुनिया में, राइट? या 3-4 कंपनीज जो हैं, उसमें अगर आप एप्पल को ले लें तो एप्पल जो है वो गैराज से शुरू हुई थी. स्टीव जॉब्स जिस घर में रहता था उसके वो अपने पेरेंट्स भी नहीं थे, फॉस्टर पेरेंट्स थे. ही हैड बीन अडॉप्टेड. वो उसके गैराज में वो और स्टीव वॉजनियाक जो है वो बैठ के उन्होंने कहा कि जी चले हम बैठ के एक कंप्यूटर बनाते हैं और उसको बेचेंगे. शुरू में तो उन्होंने एक यूनिट बनाया, ठीक है ना, हाथों से बैठ के उस गैराज में. उनके पास कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई दफ्तर नहीं था, कोई कुछ नहीं था. एंड दे स्टार्टेड डूइंग दैट, राइट? Money follows. Trust me, money always follows. You have to start. आपको solution जो है, आपको problem जो है, वो जब आप देख लेते हैं कि जी क्या problem है, अगर आप मुझे बताएं कि आप किस problem को solve करना चाहेंगे, तो फिर मैं आपको बताता हूँ आपको funding कहाँ से आएगी. Like sir, water resources, जैसे कि तुर्बत का एक बड़ा मसला है water resources, जिसके storage अभी जो जमीन इसके अंदर गहराई में जा रहा है वाटर, इसका बहुत मसला है तुर्बत में. या वाटर टेबल जो है वो वाटर टेबल डीपर होती जा रही है और उसको एक्सट्रैक्ट करना ज्यादा एक्सपेंसिव होता जा रहा है, ठीक है ना. पानी की किल्लत है. ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसका तो सोल्यूशन जो है वो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना. इसमें तो आप गवर्नमेंट भी आपको जो है
वो सपोर्ट करने को तैयार होगी इफ यू कम अप विद द राइट सोल्यूशन। ठीक है, असल चीज तो ये है कि आपने प्रॉब्लम देखा, आपने कहा है तुर्बत में पानी की जरूरत है। व्हाट इज द पॉपुलेशन साइज ऑफ तुर्बत अंदाजा? 10 लाख 10 लाख 1 मिलियन, 10 लाख। दैट्स अ बिग सिटी, दैट्स नॉट अ स्मॉल सिटी। मैं तो सोच रहा था 25 30 40 हजार की बात है। 10 लाख सेकेंड पॉपुलेटेड सिटी है। वेरी पॉपुलेटेड। तो हाँ 10 सर। लाख का जो प्रॉब्लम है ये तो बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है ना। कि 10 लाख का प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूं, दो तीन तरीके हैं। ठीक है ना, एक ये है कि जो पानी बारिश अगर होती है और वो पानी जो है किसी तरीके से हम उसको स्टोर कर पाए, तो पहली चीज तो ये है। दूसरा, पानी का कहाँ है, रिसोर्स क्या है? कारेज है, बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा कारेज है ना, अंडर वाटर स्ट्रीम्स हैं। ठीक है ना, वहां से पानी एक्सेस होता है। तीसरा ये है कि मैं प्रिजर्व करूं, कि मैं पानी का इस्तेमाल जो है इफेक्टिव करूं। अब मैं आपको छोटा सा बताता हूँ। मेरे पास एनआईसी में 5 इंजीनियर्स आए थे। ठीक है ना, एक कंपनी आई थी और वो पांचों के पांचों इंजीनियर्स थे और वो एक आईओटी सोल्यूशन लेकर आए थे स्मार्ट होम का। कि जी स्मार्ट होम होगा, मैं कमरे में एंटर होऊंगा लाइट ऑन हो जाएगी, मैं कमरे से निकलूंगा लाइट ऑफ हो जाएगी, एसी जो है वो ऑन होगा वो एसी ऑफ हो जाएगा। ये मैंने कहा यार ये मुझे तो प्रॉब्लम नजर नहीं आती। स्मार्ट होम इज नॉट अ प्रॉब्लम एट दिस पॉइंट इन टाइम, इट्स अ नाइस टू हैव। मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे है, मैं कहूँ यार मैं अपने घर में जो है ना शशका चाहिए मुझे। ठीक है ना, तो मैं शशके के लिए मैंने स्मार्ट होम सोल्यूशन लगा दिया। 18 लाख रुपए का सोल्यूशन एक घर के लिए। मुझे 6 हफ्ते लगे थे उनके साथ। 6 हफ्ते जो बार बार बात हुई, तो फाइनली दे केम टू मी। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ये बताएं तो फिर क्या करें। हमने जाके रिसर्च किया, यू आर राइट, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड कि अपने घर को स्मार्ट होम बना दें, तो क्या करें। तो मैंने कहा देखो पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट अराउंड अगस्त। ठीक है ना, 2019, पिछले साल की बात हो रही है, जुलाई अगस्त तक। तो उन्होंने कहा क्या करें। मैंने उनको एक पेपर जो है ना मैंने डाउनलोड किया नेट से, मैंने उनको वो दिया। मैंने कहा ये देखो वो क्या है, एटमाइजर है, वाटर एटमाइजर। व्हाट इज अ वाटर एटमाइजर? जो आपके नलके से पानी आ रहा है ना, जो पानी बह रहा होता है नलके से, उसको वो एटमाइज कर देता है। जिसका मतलब ये है कि या उसके स्प्रे बना देता है या उसकी मिस्ट बना देता है। उससे होता क्या है, अगर वो मिस्ट बनाएगा तो 98% सेविंग होगी पानी की। 98%। वही पानी जो आप इस्तेमाल करते हैं नलके से, वो 98% सेव होगा और वही आप हाथ भी धो पाएंगे, बर्तन भी धो पाएंगे। अगर आप स्प्रे यूज करते हैं तो तकरीबन 78% तक सेविंग देता है। दैट कंपनी इज नाउ कॉल्ड आबशार। आबशार उसका नाम है। ठीक है ना, और वो अब जो है उनको इन्वेस्टमेंट भी मिल गई है। 5 मिलियन की उनको इन्वेस्टमेंट मिल चुकी है। प्रोडक्ट उनका मार्केट में जा चुका है। अब उनकी स्केलिंग हो रही है, ग्रोथ हो रही है। उनके पास पैसे नहीं थे। उनके पहले जो है ना वो एटमाइजर बनाने के भी उनके पास पैसे नहीं थे। वो 25 30 हजार 40 हजार जो इनिशियल चाहिए थे प्रोटोटाइपिंग के लिए, वो भी पैसे नहीं थे। सो आई एनकरेज देम, दे डिड सम फ्रीलांसिंग, दे डिड सम ट्यूशंस। उन्होंने वो पैसे वहां से लिए और उन्होंने जाके वो कर। मैंने कहा जब एक बार बना लोगे प्रोडक्ट, वो टेस्ट हो जाएगा, उसकी वैलिडेशन हो जाएगी, तो मनी विल कम। देव रिसेंटली वन अ कंपटीशन, देव गॉन इनटू एन इंटरनेशनल कंपटीशन, राइट। यूनिडो का कंपटीशन था, दे वन दैट। देव गॉन टू एन इंटरनेशनल कंपटीशन। Two angels have invested about $500,000 already, 5 million in them already. Now they're producing units by the thousands and they're selling. And all it does, it saves water, right? दो तरीके है ना, एक पानी ज्यादा हो जाए, एक में पानी बचा लो। और बड़ा सिंपल सोल्यूशन है। वो सिंपल ब्रास का बना हुआ एक एटमाइजर है जो आप मल्टीपल फंक्शंस भी कर सकते हैं, उसके डिफरेंट मोड्स भी हैं, या आप सिंगल मोड पे भी उसको बना सकते हैं। मैंने लगाया है वो अपने घर में, और मुझे उनका मैसेज आता है। वो हर महीने मुझे मैसेज आता है कि उस महीने में मैंने पैसे कितने, मैंने पानी कितना बचाया, राइट। बिकॉज दे कैलकुलेटिंग कि अच्छा ये 3 अगर लगे होंगे एटमाइजर्स, 3 टैप्स हैं, नॉर्मली उसमें से इतने लीटर फ्लो होता है। अगर ये एटमाइजर लगा होगा तो वो कितना कम फ्लो होगा। वॉशिंग अ कार, वॉशिंग व्हेन यू वॉशिंग अ कार, ठीक है ना, तो आप कैसे धोते हैं गाड़ी को, या आप होज इस्तेमाल करते हैं, खुला नलका इस्तेमाल हो रहा होता है। जब हम वुजू करते हैं, खुला नलका चला के हम करते हैं। मैं आई वुड रिकमेंड यू, एक यूट्यूब पे देयर इज अ वीडियो ऑफ अ शेख इन मॉरिटानिया।
who does wuzu in the manner that the Prophet used to do. And you will be amazed. I'm using the word amazed. छोटी सी चायना की, जो नहीं आपके क्वेटा होटल, जो चाय का होटल होता है, जो छोटी चायनक होती है जिसमें 2 या 3 कप होते हैं, उस साइज की चायनक से वो वुजू करता है. बिकॉज डेजर्ट में पानी की बहुत ज्यादा वैल्यू थी. पानी आप खुला नलका तो चला ही नहीं सकते थे. ठीक है ना. तो ये इस तरह की सोचने की जरूरत है. जब आप किसी प्रॉब्लम को प्रॉपरली उसको डिफाइन करके, आइडिएशन करके उसका सोल्यूशन एक डिजाइन करेंगे ना, money will come. The best money, the best value, the best wealth is your own expertise and your own commitment. That is the first thing. आपकी जेब में कितने पैसे हैं, आपके ज़हन में कितनी जो है वो नॉलेज है, स्किल है, उसके बाद आप चलते हैं. और सबसे बेहतरीन पैसा आपके कस्टमर को होता है. आबशार ने फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर किया. अब उनको एक होटल मिला है इस्लामाबाद में, उस होटल के हर कमरे में उन्होंने वो लगाया. अब वो क्योंकि वो वैलिडेट हो गया, 300 कमरों में 300 नलकों में वो उनका वो एटमाइजर लगा. इट इज सेविंग मिलियंस ऑफ लीटर्स एवरी मंथ, मिलियंस ऑफ लीटर्स इन जस्ट 300 टैप्स. So just think of it. I can connect you to them, you can talk to them, and you can think of Turban and say, okay, that's one solution. तो पानी हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? 2 जगह करते हैं. एक तो हम एग्री में बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है, right? So a lot of people are designing solutions for that, कि पानी कम इस्तेमाल हो, तरीके से इस्तेमाल हो, इफेक्टिवली इस्तेमाल हो. दूसरा हम घरों में करते हैं. घरों में हम क्या करते हैं? हाथ धोने के लिए करते हैं, बर्तन धोने के लिए करते हैं, कपड़े धोने के लिए करते हैं, नहाने के लिए करते हैं. यही है ना. तो वो सोचने की जरूरत है. अब वो ही आबशार जो है उन्होंने टैप्स का सोल्यूशन निकाल लिया. नाउ वो अब दे वर्किंग ऑन द शावर्स. कि शावर्स का सोल्यूशन क्या हो. वहां भी बहुत ज्यादा पानी बहता है, इस्तेमाल होता है, इतना पानी चाहिए नहीं होता. वही मैं एक बाल्टी और एक मग के साथ भी कर सकता हूँ, जो मैं शावर खोल के कर सकता हूँ. राइट. सो ये सारी चीजें हैं. तो यू हैव टू थिंक ऑफ इट इन दैट वे. ठीक है जी. Thank you. Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम सलाम. Sir, as you said that we must know the identification of our problem, but we have some factors that diverge us from the identification of our problem. So how to manage these diversions? Tell me an example. Give me an example. Sir, as we know, we have unconscious mind. We have many factors. For example, I personally might have useless imaginations. We can say overthinking, which resist me from the identifying of my problem. You're talking in general terms. Tell me specifically, what is the one problem that has come to your mind and then you're having this issue? So overthinking. Overthinking. What does overthinking mean? Sir, for me, excessive self-talking or useless imaginations. Achha. There is no such thing as useless imagination. Trust me. Right? Some of the people who created things, that when they were thinking of it, if you look at Einstein and the theory of relativity, what was the use of the theory of relativity initially? Does anybody in this room know that these PV cells, which are used for solar energy, actually came from Einstein's research, right? Of how light travels. Does light travel in waves or does light travel in packets, right? And from that came this whole thing of converting light into energy. It is not heat, it is light, right? जो energy में convert होती है. तो इस तरह की चीजें जो हैं, हमें सोचने की जरूरत है. If you just give me a minute, I'll just plug in this laptop. I think I've got a problem. Challenge. If I drop out, I drop out. So no such thing as overthinking. Overthink as much as you want to.
Imagine as much as you want to. That is not a problem. That is actually a very good thing if you imagine. But do not let things paralyze your thinking. Do not constrain your thinking. जितना ज़्यादा आप उसको जो है ना अपॉर्चुनिटी देंगे ना, you will arrive at a destination. ये प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी एरिया है. Like I said, there's no such thing as overthinking. Overthinking होती है कि मैंने किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और मैंने उसको एक सोल्यूशन सोचा. जैसे स्कूल है, you can I think we've lost our trainer. उनकी शायद बैटरी खत्म हो गई है. Let me just check with him. अगर वो फोन से ऑनलाइन आ सकते हैं तो. Gee, I'm sorry I had to drop out. I had to plug this laptop in. Can you hear me? Yes, sir. जी फैसल. Does that answer your question? Or so we were talking about overthinking, and I said there's no such thing as overthinking, right? If your mind is wandering, let it wander. It'll get to a destination, right? So don't curb it, right? Just allow it to play out. That is the best way to do it. We were talking about Albert Einstein, and we were talking about the general theory of relativity. So there was no apparatus for him to prove the theory. All they were was thought experiments. He was actually thinking through, because he used to travel every day, right? The interesting thing is that he always wanted to be a teacher, and his applications were rejected multiple times, right? So he ended up working in the patent office of Bern, Switzerland. So every day he had to take a train to go to work. And while he used to take the train, he started thinking that things are in relative relationship to each other. If you're standing on the platform and a train goes by, what you see and what the person in the train are seeing are two different things. That's where the general theory of relativity started from. And where did it lead us to? Black holes, right? The fabric of space-time. What exactly is gravity, right? All these things, just from imagining. The imagination is not a problem. Okay, Faisal, I think it's going to file with your question, with your answers. So they don't have any further questions regarding this information. Okay. All right. Last message, if you want to give any message to the students, if you can. Yeah, the message is very simple. What I had mentioned, I think about 4% of Pakistanis actually make it to a university. So you're the privileged ones, but privileges also mean that you have a responsibility. So you have to now use this knowledge that you've acquired in Turbat University to solve problems that are particular to Balochistan, particular to Turbat to start with.
and then think of Balochistan, right? If you start to do that, your life would be very meaningful. Trust me on that. Trust me that your lives would be very, very meaningful, right? And you will fulfill your purpose. I recently, I know there is a madrasa in Lahore. So I had gone there, and we are helping them build a center of entrepreneurship in the madrasa for the girls there. Can you imagine? When I tell people, they say, "Is that really possible?" And I said, "Yes, it is." Because you just need to touch the right chord. And that madrasa is being named after Bibi Khadija. Right? So the answer was always there. The answer was always there. And it was amazing that the level of interest from the girls in that madrasa is so high that you'd be amazed. We talk about, problem with women entrepreneurs or girls wanting to get into business or solve problems and barriers. Can there be a bigger barrier than inside a madrasa? There couldn't be. But there is knowledge in that madrasa, and that very knowledge is helping us leverage that. Right? So you need to think in those terms. So please look at the problems around you. Fall in love with the problem of your choice. Literally do that. And then start to work on defining that further and then designing a solution. And trust me, you will find that your degree will have much more meaning than just going out and looking for a job once you've acquired your degree. Jobs are going to be difficult to find. Jobs are not going to grow at the pace at which the number of people. For me, it was shocking. I mean, I should have done a little bit of research. For me, it was shocking to know that Turbat has a population of 1 million. That's a pretty big city. I was in a conversation with the University of Central Asia, which is in Kyrgyzstan, and their campus is in a city called Naren, which has 40,000 people. We're talking about a city of 1 million over here. And Naren wants to set up a center of entrepreneurship. That is why I was having that conversation with them. So, aapki opportunity, so if I look at that, is 25 times what the opportunity is in Naren. And that's a pretty big university with the Akhan Development Network funding it. Right? So do look around. When you go back home today, think about it. When you're on your journey back home, see things that you have possibly seen but not seen. That is the important thing. That we start seeing things and we start hearing things. Thank you very much for your time. It is. I'd like to conclude the training here. Thank you so much for your valuable training, Faisal. And we definitely learned a lot from your experience. And I'd also like to thank University of Turbat's management, our sponsor, Frederick Naumann Foundation for Freedom, and students for their time and valuable contribution and for being a great audience. Thank you, Granas, for giving us this platform to connect with each other. We will be happy to take feedback. I'm attaching the link in the chat box. And yeah, thank you so much. I think it's enough. Thank you. Thank you, Mayor. Thank you, Imam and Raji. Thank you, Faisal Saab. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Allah Hafiz. Take care. Allah Hafiz.